Hi all, good evening. I hope I am audible. I hope I am visible. All students are able to see me. Good evening. Am I audible? Am I visible? Kindly confirm. Let me check on my app also. Not able to see the chat, though I can see the audio is in video. I can see the video is on. Everyone, if you are getting the audio and the video, kindly confirm. Just in case you are not, kindly raise that. You can see audio is working. So we are here for the third class. Sorry, not third class, the fifth class of resources. Cannot see the chat though. Let me log in and looking at the audio and the video. Checking with the technical team.
उज्जवल नहीं आ रही साउंड, तो मैंने अभी ऑन कर दिया. Am I audible, everyone? Sorry. So because of the technical issues, I hope I'm audible now. So I said, till because the chat is for some reason not being available. So let us look at some left brain work. One is the conventional sources, fossil fuel and hydroelectricity, and the non-conventional sources. तो जब मैं लिखता हूँ hydroelectricity, conventional is paramparagat means जो हम for over a period of time we have been using and we have become normal with it, that is called conventional sources. Non conventional गैर परंपरागत जो हम normally use नहीं करते. ठीक है. So moment I write hydroelectricity, some of you might have this feeling कि सर हाइडल कैसे हो सकता है, ये तो नॉन रिन्यूएबल है या रिन्यूएबल है. So we are not talking about renewable and non-renewable. Classification is not नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय. Classification is conventional, non-conventional. एक और classification हो सकता है which can be renewable and non-renewable. इसमें यहां पर fossil fuel आएंगे और यहां पर हाइडल आएगा. Do we get that? But I'm talking about this. जो normally world में, and India has been using hydroelectricity the world over, it has been used for quite some time. So this is quite natural, conventional. To certain extent मैं कहूँगा nuclear, especially in developed world, is conventional. Developed world has been using nuclear energy for quite some time. In fact, after the Fukushima disaster, जो जापान में जो फुकुशिमा का disaster हुआ, because of which the cooling system could not be maintained, so the countries decided that even nuclear energy can be dangerous. So Germany has become one country जिसने decide किया कि हम nuclear रखेंगे ही नहीं. By 2020, they had planned कि we will remove all the nuclear. Though we do hear that with the energy crisis that has happened in Europe, ये जो अभी यूक्रेन वॉर की वजह से, सो जर्मनी वॉज लुकिंग इनटू द न्यूक्लियर ऑप्शन वंस अगेन. डू यू गेट दैट? तो ये हमने पहली बात की कि कन्वेंशनल सोर्सेज, फॉसिल फ्यूल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर. नॉन कन्वेंशनल फॉर्म सोर्सेज में विच वी आर लुकिंग एट रिन्यूएबल्स, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, सोलर, विंड, geothermal, biomass as well as आजकल हम फ्यूल सेल की भी बात कर रहे हैं. फ्यूल सेल, हाइड्रोजन सेल आपने सुना, हाइड्रोजन सेल, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. कई तरह की एनर्जी, इसी में हमने मरीन एनर्जी, ओशन एनर्जी, ओशन और मरीन सोर्सेज से हमने टाइड, वेव, ओटेक, ये सब मैंने सिर्फ एक टेबल बनाया है. एंड टेबल इज एब्सोल्युटली लेफ्ट ब्रेन. आई एम जस्ट सेइंग कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी रिसोर्सेज, आई थॉट कि चैट विल बी एनेबल्ड, तो तब तक हम लेफ्ट ब्रेन कर लेते हैं. बट माई टेक्निकल टीम से इसकी शायद चैट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, विल नॉट बी एबल टू गेट दैट. ये सुनो, तो दैट इज दैट. ठीक है. Is everyone okay? So conventional, fossil, hydroelectric, nuclear, and these are renewable sources. ये अभी non conventional है, but the world is slowly gradually moving into that. Is everyone with me on this? ठीक है. Are we clear on this? तो पहला चीज तो ये कि we need to see what is happening on this. Is everyone okay? नेक्स्ट, इसमें जोग्राफिकली इंपॉर्टेंट कौन सा है? वेयर वी आर लुकिंग एट लोकेशंस, बिकॉज वी आर लुकिंग एट जोग्राफी, लोकेशंस.
तो लोकेशन वाइज आई वुड से आर मोर इम्पोर्टेंट. ये भी लोकेशन में हो जाता है, ये भी लोकेशन में हो जाता है. सो दीज आर द वंस which we should see in terms of geography. तो geography की terms में अगर मुझे कुछ देखना है तो I should be looking at both of them. अब hydel electricity ये कहीं पर भी हो सकता है, wherever you have rivers and an altitude, so many countries are there. So I would not say कि इसको एक जगह फिक्स करने की जरूरत है. Say for example I was talking about Mekong river पर like many dams have been created, and in world geography it is not important to know the dams of the world. Say for example जो हमने अभी बात किया कि in the crisis time Russia has bombed the dam in Ukraine. Well, the theories are different. Russian TV channels are showing to the Russians that we did not bomb it. It is the Ukrainians who have done this. The world outside says the Russians have done it. I do not know what is the story behind that, but that dam is in news. So if a particular dam is in news, that's there. If a particular dam has created say for example a lake behind it which has been given a Ramsar status, that might be covered in environment. Current में अगर कोई water body आती है then we take it, otherwise we don't need to know the locations of these. जहां तक रही बात सोलर, विंड, जियोथर्मल, बायोमास, फ्यूल सेल, ये आपको साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, but would not be, say for example, distribution. Say for example when we are talking about International Solar Alliance, so International Solar Alliance Paris जब सम्मेलन हुआ, when we were talking about the climate change summit in Paris, so there we saw we were looking at in 2020 we wanted the new deal to come, and there it was also thought of something called as International Solar Alliance. So all the countries जहां पे tropical belt में where sun is shining bright, they all joined Solar Alliance. तो अब ये कहना कि सोलर का कोई एड्रेस है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा. Is everyone okay with this? तो इनका कोई एड्रेस नहीं है, तो no address, and I would say the world is moving towards this, so lot of development is happening, so they are more related to current affair. Is everyone okay? So I would not say that I have to teach you static on this, but this is where I would want to bring in. Is everyone with me on this? Are we clear? Okay. After Jammu and Kashmir, lithium is found in Rajasthan. ठीक है, अच्छी बात है. लिथियम राजस्थान में भी मिल गया. लिथियम के बारे में अगर कुछ जानेंगे नहीं तो काम कैसे बनेगा, है ना. लिथियम मिल तो गया, लेकिन क्या वो लिथियम हमारे काम आएगा, ये बात करेंगे अभी. So first of all, are we okay with this? So what are we going to focus? Our class is going to focus on fossil fuels and nuclear. This is what we are going to focus, and my team tells me I think the chat is also enabled, so हम उस पर बात करने वाले to participate in that. So we are talking about distribution of resources. ये हमने कर लिया iron, crude, bauxite, alumina, primary and aluminium and copper. We have talked about copper. Copper के साथ cobalt भी मिलता है, nickel भी मिलता है. We have looked at many things in that. Tin के we saw 2 belts. Gold we saw where is it being produced, हमने locations भी देखे. We looked at the producers also. Silver में I told you do not forget Mexico, so that is important. Diamond I told you something about that. ये lithium, cobalt, nickel, अब ये nickel भी batteries में use होता है, तो they have become important. Cobalt पे UPSC ने question पूछा which is the country having the largest one, so we have Congo. Lithium का थोड़ा सा भी, जैसे किसी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के बाद लिथियम सर राजस्थान में भी मिला है, तो अभी मैं बताना चाहता हूँ जस्ट थोड़ा लिथियम मिल जाना इज नॉट अ वेरी बिग अचीवमेंट, और अभी वर्ल्ड के लिथियम रिजर्व्स में इंडिया नहीं आता है, वेरी वेरी लो. ठीक है, उसके बाद वी आर कमिंग डाउन एंड मैग्नीशियम, मर्क्यूरी, माइका, मोलिब्डेनम, प्लैटिनम. कल कोई प्लैटिनम पे दुखी हो रहा था, सर प्लैटिनम बताओ, प्लैटिनम क्या करेगा, मतलब देयर इज अ ह्यूज लिस्ट. याद भी कर पाएंगे हम उन्हें? रिमेंबर द एग्जामिनर वांट्स व्हाट? की रिसोर्सेज. अब प्लैटिनम, पैलेडियम, प्लैटिनम ग्रुप मेटल क्या होते हैं? प्लैटिनम होता है, उसके साथ पैलेडियम होता है. साउथ अफ्रीका एंड रशिया दे आर प्रोड्यूसिंग मोर देन 50%. यहां देखोगे मोलिब्डेनम चाइना, चिली, माइका चाइना, मेडागास्कर दे आर प्रोड्यूसिंग. मर्क्यूरी इतने में खत्म हो जाता है. सो हर चीज में अगर हम सब रटने लगे तो यू सॉ, कल किसी ने, शायद मुस्कान था उनका नाम, he asked a question कि सर ये सब याद कैसे रहे. So we are looking at something which we can process, but I do see कि लिथियम जो बैटरी आ रहा है, लिथियम कोबाल्ट पे कोई बात होनी चाहिए. सो आई विल मेक अ मेंशन ऑफ दैट. इज एवरीवन ओके?
सर बिफोर जॉय न्यू साइक्लोन हैव कम टू अरेबियन सी। बेटा आज थोड़ी आया, वो तो काफी टाइम से डेवलप हो रहा है। ये सुनो, डेवलप हो रहा है एंड गुजरात के कोस्ट पे शायद कल फोरकास्ट था 50 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं चलेंगी, दैट्स ऑल। बट वो हमसे दूर जाने के ज्यादा चांस है उसके। आई होप यू रिमेंबर द पाथ। ठीक है एवरीवन, अब लेट अस लुक एट फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं। So what are the fossil fuels you know and what are the challenges that is there? The volcanic eruption in Hawaii, current affairs from Hindu. बेटा हवाई इज अ हॉटस्पॉट, वहां तो हमेशा ही जा रहा है, हमेशा ही जा रहा है। बताओ यार, कह रहा है कि यार वहां पर आ गया है। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, स्टील एंड आयरन, बट इट इज अ डेवलपिंग कंट्री। अनुराज गुप्ता कह रहे हैं चाइना तो डेवलपिंग कंट्री, सर वो प्रोड्यूसर कैसे हो सकता है? सब लोगों को पता है ना कि चाइना ऐसा डेवलपिंग कंट्री नहीं है जिम्बाब्वे की तरह, डेवलपिंग कंट्रीज में लीड कर रहा है। तो चाइना ऐसा तो नहीं है, ऐसा कैसे कर रहे हो अनुराज जी? अनुराज, खैर मुझे याद आ गया अनुराज का क्वेश्चन है तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं अनुराज। सर मोनाजाइट का क्या रोल है? हर चीज का रोल थोड़ी होता है यार। आपको बताया ओर्स होती हैं, ओर होती है ना, ओर खदान, तो एक मोनाजाइट है। मोनाजाइट किसकी खदान है? थोरियम की खदान है। तो इसके बाद बताइए कोई रोल है इसका? क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं सर मोनाजाइट का क्या रोल है, भाई मोनाजाइट पे अगर थोरियम लिखा आ गया तो उस पे बताने की क्या जरूरत है, ये बताइए मुझे। बट आपने क्या सोचा कि गूगल का काम यही करते हैं? ये सुनो, आर वी ओके विद दैट? चलिए, तो एक ने कहा सर चाइना तो डेवलपिंग कंट्री, वो एल्यूमिनियम कैसे बना सकता है? मतलब दुनिया की इकोनॉमी भैया चाइना से चल रही है और इनको ये सरप्राइज है। एक कह रहे हैं सर थोरियम का रोल क्या है, तो ये रोल जो है लोगों को एंटरटेन रखता है, इसलिए। जल्दी से बताइए फॉसिल फ्यूल पे, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, क्विकली क्विकली। तो फॉसिल फ्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, तो व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड विद फॉसिल फ्यूल? यस, हर्षराज कह रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस पे मैंने रवांडा जेनोसाइड पढ़ा। अच्छी बात है, रवांडा को ढूंढ लीजिए, क्या है लोकेट कर लीजिए। ठीक है, क्विकली क्विकली, गुड इवनिंग बंद करिए, जल्दी से बताइए क्या है सर। तो एक तो कहीं पर आ रहा है पोल्यूशन। क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल? फॉसिल वर्ड जीवाश्म जिसे हम कहते हैं, दिस इज द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स which are found in the dead remains of plants and animals, उनसे बने हैं फॉसिल फ्यूल। परफेक्टली ओके। और क्या है सर? दे आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। ओके चलिए, एक किसी ने कहा सर पोल्यूशन है, एक है ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल सही है, ग्लोबल वार्मिंग भी ये करते हैं बिकॉज दे हैव कार्बन इन देम। कार्बन आता है तो उससे CO2 होता है, सो दैट्स ऑल्सो दैट, आई गेट दैट। सर एसिड रेन, ऐसा नहीं है कि इन्हीं से एसिड रेन होती है, बट हाँ डेफिनेटली सल्फर और नाइट्रोजन जब मिलते हैं तो वो है। सर ये लिमिटेड है, ओके, दे आर फाइनाइट, दे आर फाइनाइट। व्हाट एल्स? सर दे आर नॉन रिन्यूएबल, तो फाइनाइट को ही हम नॉन रिन्यूएबल कहेंगे। बर्निंग कॉज पोल्यूशन, पोल्यूशन लिमिटेड 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 लिमिटेड, नॉन रिन्यूएबल लिमिटेड लिमिटेड। देखिए ऑलमोस्ट एवरीवन इज राइटिंग द सेम थिंग, ये सुनो, ऑलमोस्ट द सेम थिंग। और आकाश टोंक पता नहीं क्यों लिख रहे हैं सी लेवल साइड, मेरे ख्याल से राइज लिखना चाह रहे होंगे, ग्लोबल वार्मिंग का नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, एग्जॉस्टिबल है, बर्न है, लिमिटेड अमाउंट है, लिमिटेड अमाउंट है, लिमिटेड अमाउंट है, दैट्स ऑल। इसे कहते हैं व्हाई, यू नो, व्हेन पीपल आस्क मी कि सर आंसर नहीं लिख पाते, तो द रीजन फॉर आंसर नॉट बीइंग एबल टू राइट एन आंसर इज दैट यू आर नॉट एबल टू ब्रेनस्टॉर्म। आपसे फॉसिल फ्यूल पूछा गया तो क्या आप इस पर ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं? आप पूरी क्लास के पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास तीन ही वर्ड आए, किसी ने ये नहीं कहा कि वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स। कैन आई से दैट? कोल, कोल की वजह से इट इज द सीड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसके बिना हो ही नहीं सकता था। विदाउट कोल इट कैन नॉट हैपन। पेट्रोल एंड गैस, पेट्रोल
and gas. They are the propulsion of vehicles in world. ये उसी पर चल रहे हैं भाई. पेट्रोल एंड गैस से इसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं. देयर आर मेनी डेरिवेटिव्स. यस और नो? मेनी पॉलीमर सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स इसी से चलते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड कमोडिटी इन द वर्ल्ड. ट्रेड कमोडिटी इन द वर्ल्ड. ये दुनिया का जियो पॉलिटिक्स निर्धारित करते हैं. दे ऑल्सो हैव एन इकोलॉजिकल डायमेंशन. इकोलॉजिकल डायमेंशन. इकोलॉजिकल डायमेंशन में ये पोल्यूशन आ जाएगा. अब ये कह देना कलीम अंसारी क्यों लिख रहे हो यार? आपका भी नाम नोट कर लें क्या कि कलीम अंसारी के जवाब नहीं देने क्वेश्चंस, है ना? तो हम ये क्यों नहीं करेंगे भाई? मैं ये कह रहा हूं आंसर लिख कैसे पाएंगे व्हेन पीपल आर सेइंग ब्लैक पैंथर कहे सर आपने सिर्फ इशू पूछा, तो ये इशू नहीं है क्या? जियोपॉलिटिक्स इशू नहीं है क्या? कोल जो है, कोल के बिना इंडिया और चाइना चल नहीं सकते. इंडिया एंड चाइना अभी जो ग्लासगो में समिट हुई वहां पे डिसाइड हुआ कि वी विल बैन कोल. इंडिया एंड चाइना ने कहा बैन नहीं लिखना है. इंडिया एंड चाइना इंसिस्टेड दैट वी विल नॉट यूज द वर्ड बैन, वी विल यूज द वर्ड फेज आउट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिक्स. आपको नहीं पता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने इशू पूछा था ब्लैक पैंथर जी. फिर पता है क्या होता है? हम पास नहीं होते मेंस में, हमारे मार्क्स नहीं आते हैं. फिर हम कहते हैं हम तो 5 पॉइंट लिख कर आते थे, है ना? उसने तो ये नहीं पूछा था. मैंने तो आपको जनरल बताया कि यार इनके बारे में बताइए मुझे, फॉसिल फ्यूल के बारे में. अगर हम इतनी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर पाए तो बहुत गड़बड़ है भाई, बहुत ज्यादा गड़बड़ है. यस. उसके बाद क्लासेस अटेंड करना, कंट्री कैपिटल करते रहिए. द वर्ल्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम ओवरवेलमिंग डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल. ठीक है. इशू की बात कर रहे हैं. इन्हीं के इश्यूज क्या हैं? वर्ल्ड जो है ओवरवेलमिंग डिपेंडेंस, एक तो यही ये 88% ऑफ द फ्यूल जो प्राइमरी एनर्जी देते थे 2005 में, अब 84% पे आ गए. तो देयर इज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड. बट थिंक अबाउट इट, 84, अराउंड 85% ऑफ द प्राइमरी एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड कहां से आती है? फॉसिल फ्यूल से आती है. इशू है कि नहीं है? यस और नो? होगा कि नहीं होगा? आई एम तो जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम तो जस्ट टॉकिंग अबाउट ये ऑयल है, ये गैस है और ये कोल है. आप देख लीजिए पाई का इतना बड़ा हिस्सा यही ले रहे हैं. बहुत बड़ा इशू है. वर्ल्ड इसी से रन कर रहा है. द शेयर ऑफ ऑयल हैज पर्टिकुलरली फॉलन फ्रॉम 36 to 33, while that of natural gas has increased from 23 to 24, including nuclear and large hydro. हम कोशिश कर रहे हैं उनको लाने की. So that's an issue. Yes or no? मैंने तो नहीं कहा कि यार ये जो आपने कहा ये गलत है, बट सभी ने ये कहा. सभी के पास सिर्फ यही पॉइंट्स थे और कुछ नहीं था. Think about it. When we are talking about, are we talking about our ego कि मैंने कितने पॉइंट दिए? Is it about that? It is about we being able to write an answer which will give us marks. तो अगर हमारी सोच में विविधता नहीं है तो हम क्या पूछेंगे? थोरियम का क्या रोल है या मोनाजाइट का क्या रोल है? हम ऐसे ही सवाल पूछें. हमारे पास सोच की विविधता नहीं होगी तो हम यही पूछें. Do you think a bureaucrat had to think more on this? Yes or no? True. So because of black color absorbs excess heat of earth. भाई excess या नहीं तो वो तो यहां पर लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग, है ना? ग्लोबल वार्मिंग कह दिया. और किसने कहा कि सारी चीज ब्लैक ही है? गैस तो कोई ब्लैक नहीं. तो पहली चीज ये कि सो मेनी स्टूडेंट्स आस्क मी सर हम आंसर नहीं लिख पाते. क्लास में सब समझ में आता है, तो आंसर लिखने के लिए क्या चाहिए? यू डोंट हैव टू बी अ रिसीवर. सारे टाइम सिर्फ रट रहा है, टीचर दे रहा है, वो रिसीवर है. यू हैव टू बी अ ट्रांसमीटर. तो अपना ट्रांसमीटर ऑन करेंगे तभी कुछ होगा. यस और नो? आर वी ओके विद दिस? तो पहला चीज तो ये हो गया, है ना? दूसरा चीज, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस सेट अ फोर्थ कंसेक्यूटिव टाइम ऑल टाइम रिकॉर्ड ऊपर जा रहा है. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते ही जा रहे हैं. सो दैट इज एन इशू. ग्लोबल कोल प्रोडक्शन उसके बाद भी इंक्रीज कर रहा है. प्रोडक्शन अभी भी इंक्रीज कर रहा है. कौन इंक्रीज कर रहा है? दो कंट्रीज जो कोल को कंज्यूम कर रहे हैं. कौन कर रहे हैं? इंडिया एंड चाइना. इंडिया एंड चाइना. यस और नो?
उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी कंटिन्यूड इट्स इंप्रेसिव ग्रोथ, इट हैज इंक्रीज्ड, बट चाइना वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी कंजम्पशन ग्रोथ, फॉलोड बाय इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो कौन सी कंट्रीज एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं? विच कंट्रीज आर कंज्यूमिंग एनर्जी? 3 कंट्रीज के मैंने नाम लिए, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया। डू यू नो दैट देयर प्राइमरी फ्यूल सोर्स इज कोल? तो ये कोल पे ही चलने वाले। और एक और भी चीज कह सकता हूं, आई कैन ऑल्सो से दैट आउट ऑफ द 3, कोल, पेट्रोल एंड गैस, इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन, कौन ज्यादा पोल्यूशन करता है? कोल। तो आर वी स्विचिंग ओवर टू गैस? तो एक, इफ द वर्ल्ड हैज टू स्विच ओवर टू, इफ द वर्ल्ड हैज टू स्विच ओवर टू, इफ द वर्ल्ड हैज टू स्विच ओवर टू व्हाट? द रिन्यूएबल सोर्सेस। बीच में कुछ तो आएगा। सो बीच में क्या हो सकता है? अ ट्रांजिशन कैन बी, एटलीस्ट कोल और पेट्रोल को गैस पर तो लेकर जाइए, बट इनका भी लिमिटेड है। यस और नो? इज एवरीवन ओके? सो दीज आर द थिंग्स जो हमें इशू समझ में आने चाहिए। इशू तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट क्या हम सोच पाएंगे? न्यूक्लियर कंजम्पशन रोज एज द फास्टेस्ट लेवल सिंस 2004, चाइना एंड जापान प्रोवाइडिंग लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द इंक्रीज। तो चाइना एंड जापान जो है न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, फिर चाइना, हर चीज में चाइना ही। और कोई कह रहा है कि सर चाइना तो डेवलपिंग कंट्री है, कैसे ले सकता है? तो आई होप इससे तो थोड़ा ज्यादा निकलना पड़ेगा। की मिनरल्स, आजकल हम क्या देख रहे हैं? लिथियम की प्रोडक्शन फेल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की प्रोडक्शन डाउन होगी। वो जो कश्मीर और अचानक राजस्थान में लिथियम को सुनकर आप बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारा देश में बहुत लिथियम है, तो लिथियम बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद रेयर अर्थ मेटल्स, ये सारा 2020 की बात है। 2020 आई थिंक वाज अ टाइम बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन, सारे प्रोडक्शंस नीचे आए। एंड आई एम वेरी श्योर इन योर सिटीज, अगर आप शहर में रहते हैं, यू वुड हैव सीन बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन हवा पानी थोड़ा साफ हो गया था, नहीं हो गया था? कंट्रीज का वर्ल्ड ओवर द एयर क्वालिटी हैड इंप्रूव। यस, बट आई वांट टू टेल यू दैट कोविड लॉकडाउन्स आर अ थिंग ऑफ पास्ट, एंड नाउ द वर्ल्ड्स कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज वंस अगेन बैक। In fact, the world is hungrier for energy, and in that the hungriest countries are China, India. बड़ी population है, अच्छी economies की development की rate भी है, and they are dependent mostly on fossil fuels. And sadly, both China and India do not have their own indigenous oil and gas. और दोनों के पास क्या है? कोल है, तो दोनों कोल पर ज्यादा रिलाई करते हैं. So these are the issues that we are talking about. Yes or no? So this PPT gives us many points to write on the fossil fuel. आस्था, जब तक हम PPT को देखकर लिखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? रिप्रोड्यूस कर रहे हैं. But when we are brainstorming and we are able to produce that, that is the one that belongs to us. तो मैंने एक जनरल चीज पूछी कि कोल को लेकर या फॉसिल फ्यूल्स को लेकर कुछ बताइए. तो अगर आपके पास पॉइंट्स नहीं है, आपको पहले पावर पॉइंट चाहिए होता है, उसके बाद ही आप पॉइंट जनरेट कर सकते हैं. दैट मीन्स योर प्रिपरेशन इज रियली ऑन द लोअर लेवल. अभी एक लेवल ऐसा आना चाहिए कि यू ऑलरेडी हैव सम आइडियाज ऑन दैट, बिकॉज बेस्ड ऑन योर ब्रेनस्टॉर्मिंग, इतने समय से आप पढ़ रहे हैं, कुछ तो करेंगे और आपके आसपास थिंग्स आर हैपनिंग, दैट ऑल्सो टेल्स यू मेनी थिंग्स. उसके बाद आप स्लाइड से उससे एड ऑन करते हैं. दैट इज द स्टेट विच इज अ डिजायरेबल स्टेट. इज एवरीवन ओके? इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट इंडिया में सिर्फ कोल पर डिपेंड है. सो आई सेड इंडिया इज ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मेनी ऑफ इट्स फ्यूल नीड्स. ठीक है, इंक्लूडिंग थर्मल पावर प्लांट्स. कुणाल परिहार कह रहे हैं कि ये तो बेनिफिट है ना, इशू कैसे हुआ? अब ये भी बताना पड़ेगा. इशू का मतलब क्या? बेनिफिट के अलावा, और हमने तो बेनिफिट की बात ही नहीं की. क्या ये बेनिफिट है? मतलब मजाक करना है स्टूडेंट को, अगर अड़ना ही है तो अड़ सकता है. क्या ये बेनिफिट है? जियोपॉलिटिक्स, ट्रेडेड कमोडिटी इकोनॉमी, ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी. परिहार साहब, ये क्या कुछ बेनिफिट है? आप नशे में हैं, आप नशे में. वर्ल्ड का व्हीक्यूलर फ्यूल इसी पर चल रहा है. अगर ये ना हो तो गड़बड़ हो जाएगी. वर्ल्ड के व्हीकल्स इसी पर चल रहे हैं अभी भी. कह रहा है सर इश्यूज, और उसके बाद अपने को ये भी बता रहे कि भाई हम आईएएस तोड़ के निकल जाएंगे. आपसे पूछा इश्यूज अबाउट दैट, है ना? तो खैर ये आते ही रहेंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज तक सिर्फ रिप्रोड्यूस किया है, जो इनको रटाया गया ये जाकर रिप्रोड्यूस करते हैं. आप सोचिए, अगर कोई आपसे कहे आपके जीवन के कुछ इश्यूज बताइए, व्हाट इश्यूज यू आर डीलिंग विद.
अच्छे इश्यूज, बुरे इश्यूज, यार मैं जो हूँ यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, यस, उसके बाद मेरा इशू ये है कि मैं इसके बाद जॉब करूं या प्रोफेसर बन जाऊं या यूपीएससी की तैयारी करूं। इशू तो होगा, जो है वो है या नहीं होगा। तो दैट्स अ सरप्राइजिंग थिंग बट दैट विल कीप ऑन हैपनिंग। इज एवरीवन ओके? तो चलिए कोई बात नहीं, इश्यूज पर जो आपकी जानकारी है, कई बार मुझे लगता है कि मे बी स्टूडेंट 12th क्लास का स्टूडेंट होगा जिससे हम बात कर रहे हैं आईएएस की, तो बेकार में वो बेचारा इससे आगे की सोच नहीं पाता है, की वजह से क्लास को नहीं करना चाहिए। लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दीज रिसोर्सेज। अब कोल कैसे बनता है, ऑयल एंड गैस कैसे बनता है, इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट देम। तो वट एवर यू नो प्लीज लेट मी, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। The many industries use electricity in India. Why hydel power plant are not enough in produce sufficiently? मनोज यादव जी थोड़ा तो दिमाग लगाइए। आप कहाँ से हैं? राजस्थान में हाइडल पावर प्लांट लगा दीजिए मनोज यादव जी, फिर उससे काम हो जाएगा। राजस्थान में लगाइए जरा हाइडल प्लांट मनोज यादव जी। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, अच्छा जल्दी से बताइए। कोल आर इन सेडिमेंट, भाई कोल की बात हो रही, जल्दी से बताइए क्या होता है। कार्बन मेटामॉर्फोसिस, तो फॉसिल फ्यूल है, कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। अगर हम सेल्यूलोसिक मटेरियल, प्लांट्स का मटेरियल, प्लांट्स वेजिटेटिव मटेरियल buried deep inside अर्थ में अगर चला गया, एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तो वो क्या बन जाएगा, कोल बन जाएगा। ये किससे बनता है, प्लांट से बनता है, कोल प्लांट से बनता है। इज एवरीवन ओके? ठीक है। बायोमास कन्वर्ट इन फ्यूल अंडर हाई प्रेशर टेम्परेचर। गैस फ्रॉम वोल्केनो, प्रज्ञा उपाध्याय जी आपको कुछ नहीं पता है इसके बारे में, कोई बात नहीं। इज एवरीवन ओके? पहली बात यह है कि एक तालाब, देयर इज अ वाटर बॉडी, देयर इज अ वाटर बॉडी, एक तालाब है, ठीक है। धीरे धीरे उसमें क्या होता जा रहा है, सेडिमेंट्स भरते जा रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर क्या हो रहा है, छिछला होता जा रहा है, इट इज बिकमिंग शैलो बिकॉज सेडिमेंट्स आर देयर, ठीक है। यहीं पर पेड़ भी है, सपोज देयर इज अ पेड़, ऐसा पेड़ थे, वेजिटेशन थे सम, और उसके ब्रांचेस इसमें गिर गए, पेड़ के ब्रांचेस, पुराने ब्रांचेस यहां पर गिरे। डू यू गेट दैट? अभी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की कोई बात ही नहीं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की कोई बात नहीं है। तो वी आर लुकिंग एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की कोई बात नहीं। अब क्या होगा, दिस वेजिटेटिव मटीरियल, वेजिटल मटीरियल, व्हाट विल हैपन टू वेजिटल मटीरियल, ये सड़ने लगेगा, इट विल स्टार्ट डिकम्पोजिंग, ये डिकम्पोज हो जाए, ठीक है तो वेजिटल मटीरियल, है तो वेजिटल मटीरियल। कैन वी टेक दिस डिकम्पोज मटीरियल आउट एंड बर्न इट, इज इट कोल? क्या ये कोल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? विल इट बी कॉल्ड अ कोल और नॉट? जल्दी से बताइए। तो एक वेजिटल मटीरियल है, ब्रांचेस हैं पेड़ की, तो वो सड़ रही थी काफी समय से, एंड दे हैव स्टार्टेड डिकम्पोजिंग, हमने उनको बाहर निकाला, ड्राई कर लिया और अभी आग लगा रहे हैं। विल दिस बी कोल और नॉट? तो पहली बात, दिस विल बी कोल, इस कोल को कहते हैं पीट। ऐसे कोल बनना शुरू होता है, दिस इज कॉल्ड पीट, समझ गए? इसे पीट कहते हैं। पहली चीज, तो कोल को समझने के लिए बड़ी बात यह है कि कोल का जो पहला चरण है वो ऐसे ही बनता है, बॉग्स में, पीट्स में, वहां पर भी बनता है, लेकिन ये लकड़ी की तरह जलता है, तो दिस इज नॉट गुड कोल। तो द रियल कोल इज, रियल कोल वो है जो अर्थ के अंदर कुछ वेजिटल मैटर नीचे दब गया, एंड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स
सबडक्शन के बाद एनएरोबिक कंडीशन है, एनएरोबिक मींस नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन में वेजिटल मैटर हैज बीन सबडक्टेड, वेजिटल मैटर हैज बीन सबडक्टेड, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उस प्रोसेस में क्या होगा, द प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन में क्या होगा, ऑल अदर एलिमेंट्स विल बी लॉस्ट। अदर एलिमेंट्स क्या होती हैं, अदर एलिमेंट्स क्या हो सकती हैं, तो सोचिए पेड़ में क्या होता है, एक पेड़ के अंदर क्या होगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, बोरॉन होगा, कैल्शियम तो होगा नहीं होगा, जो उसके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं डीएनए में वो होता है, आयरन होगा, Fe होगा, और क्या है, हमने क्या डाला है, पोटेशियम डाला है इसमें वाटर वेपर भी होगा, ना पेड़ के तने में, ये सारी चीजें होंगी, यस और नो, ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर, ये सब चला जाएगा, एंड व्हाट विल बी लेफ्ट, ओनली कोल विल बी लेफ्ट, ठीक है। पहले क्या था, कोल था, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, बोरॉन, कैडमियम, बहुत सारी चीजें होंगी, आयरन, मैग्नीशियम, सब चीजें, सारे पदार्थ जो उसने सॉइल से लिए वो सब थे, एंड वाटर, बट हमें क्या मिला, कार्बन, प्योर कार्बन हो जाएगा, तो दिस कार्बन इज कोल। इज एवरीवन ओके? समय लगेगा, इट विल टेक टाइम, कोल इज अ मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ पीट, बिल्कुल गलत है सोनू पाल, कोल इज नॉट अ मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ पीट, पीट तो ऐसे ही हो जाएगा, कोल इज अ स्टेज ऑफ फॉर्मेशन, इट इज अ टाइप ऑफ कोल, ठीक है। कोल इज अ मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ पीट, बेटा आपको जो कहना है कहते रहिए, मैंने आपको बता दिया, हम सबने सुना है, कोल के टाइप सुने आपने, क्या सुने जल्दी से बताइए, एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट, पीट, ऐसा सुना है कोल के प्रकार, गोपाल जी ऐसा कभी सुना है, तो क्यों लड़ाई कर रहे हो, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जब सर्दी पड़ती है तो लोग अपने पास एक छोटी सी अंगीठी रखते हैं जिसको कांगड़ी कहते हैं, ठीक है। कांगड़ी में क्या होती है, छोटी छोटी टहनियां होती है, उनसे कोल बनाते हैं, वहाँ के लोकल लोग खुद ही अपना कोल बनाते हैं, वो इसी तरह का पीट कोल है, छोटी छोटी टहनियों का, वो धीरे धीरे जलता रहता है और वो अपने कपड़े में ही रखते हैं उसे। डू वी गेट दैट? आयन कह रहा बट कोल ऑल्सो कंटेन सल्फर, भाई ये इतनी सारी चीजें हैं तो निकल रही हैं, जब निकल गई तो निकल गई, नहीं निकल पाई तो नहीं निकल पाएंगी, ये सुनो, ट्रू और नॉट। कोल में अगर सल्फर है तो है, मैंने तो कहा सारी चीजें, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरॉन, आयन, पोटेशियम, सल्फर सब है, तो जब उसका रॉ मटेरियल ये है तो उसमें आएगा, ये सुनो। बट व्हाट विल बी मोर, कार्बन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा। डू वी गेट दैट? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टाइप्स, ये चार टाइप्स में क्या अंतर है, व्हाई आर वी हैविंग 4 टाइप्स ऑफ कोल, कैन एनीवन टेल मी व्हाई दीज 4 टाइप्स? व्हाई दीज 4 टाइप्स ऑफ कोल, जल्दी से बताइए, 4 टाइप्स ऑफ कोल अलग अलग टाइप के क्यों बने? नहीं ये तो मुझे पता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, वाई, तो आप कह रहे परसेंटेज ऑफ कार्बन, मैं समझ गया, एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट, और क्या है, पीट। परसेंटेज ऑफ कार्बन तो इसमें मैक्सिमम होता है 100%, तो इसमें भी नहीं होगा, और यहां पर मिनिमम होता है, ठीक है। परसेंटेज, रिलेटिव परसेंटेज, क्योंकि बाकी इंप्यूरिटीज भी है, ठीक है। और बताइए, मॉइस्चर कंटेंट, ये उल्टा हो जाता है, ये मिनिमम यहां पर है, मैक्सिमम, और क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो यहां पर ये जलेगा तो लॉट ऑफ स्मोक आएगा। आप सोचिए लकड़ी जल रही, उस पर पानी डाल दीजिए तो स्मोक बनाएगा ना, मोर स्मोकी, और ये क्या जलता है, नो स्मोक,
नो स्मोक नो रेसिड्यू। एंथ्रेसाइट जब जलता है, एंथ्रेसाइट लीव्स नो रेसिड्यू, पूरा कोल जल जाएगा गायब, उसके बाद नथिंग इज लेफ्ट, बट इसमें बहुत सारा वेस्ट बचेगा। यस और नो? ट्रू? जल्दी से बताइए, परसेंटेज ऑफ कार्बन क्यों अलग है? माई क्वेश्चन इज व्हाई इज इट डिफरेंट? Amount of carbon the coal contains and the amount of heat energy coal has to produce. I am asking you, why is it different? Why is it different? Question is, why is the percentage of carbon more in anthracite and less in peat? Shield platform, मीनाक्षी जी, इसका शील्ड और प्लेटफॉर्म से आपको लगता है लोकेशन है? वो कल किसी ने, एक चंपक ने लिखा था ना, वोल्केनो से कोल बनता है, क्या ये शील्ड और प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है? दिमाग लगाइए यार, अभी आपके सामने, इसीलिए मैं बता रहा हूं ना, पढ़े लिखे अनपढ़ों से मुलाकात यहां हो जाती है। टीचर ने अभी प्रोसेस बताया कोल कैसे बनता है, आपके सामने बनाना शुरू किया, यहां बनाया, फिर यहां बनाया कि ये अर्थ के सरफेस में बेरीड डीप इनसाइड है, बेरीड डीप इनसाइड हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर कंडीशन में चेंज हो जाता है कार्बनाइजेशन। अब टीचर ने ये बता दिया, तो बताओ शील्ड का कुछ लेना देना रहा कि नहीं रहा? अभी पढ़े लिखे अनपढ़ वाली बात है भाई, जल्दी से बताओ। तो नाउ पीपल आर, धीरे धीरे जब सब लोगों ने देखा हाँ ये नहीं ये नहीं, तो अब आपका लॉजिकल माइंड कह रहा है यार, आई थिंक इट इज टू डू विथ टाइम। कोल बनने में टाइम लगता है, पहले वेजिटल मैटर है, पहले तो वेजिटल मैटर है, तो फर्स्ट स्टेज क्या बनेगा? जब वो सड़ेगा तो पीट बनेगा, पीट के बाद क्या बनेगा? उसमें और कार्बनाइजेशन होगा, सारा कार्बन इकट्ठा होता जा रहा है, अदर इंप्योरिटीज धीरे धीरे हट रही हैं, लिग्नाइट। उसके बाद क्या है? उसके बाद बिट्यूमिनस, और फिर आएगा एंथ्रेसाइट, अंत में एंथ्रेसाइट। कैन आई से विद टाइम? कहते हैं शराब जितनी पुरानी हो उतनी बढ़िया होती है, मुझे नहीं पता है, तो जॉनी वॉकर शराब की जो ब्रांड है वो कहते हैं जो पुरानी शराब है वो महंगी मिलती है। कोल पर शराब वाला लॉजिक लगता है, ओल्डर द कोल द बेटर द कोल, बिकॉज इट हैज मोर कार्बन इन इट, पीट हैज लेस कार्बन इन इट। तो एक बोला सर पीट उसका मेटामॉर्फिक, कोल तो मेटामॉर्फिक फॉर्म है। मजा मत लो, अभी सजा ले लो ये वाली समझने वाली, बट समझते हैं नहीं। ऐसे नो, स्कूल में हम कभी पढ़े ही नहीं थे इस चीज, कोई जरूरत नहीं थी, रटना था, सारे रट लिए थे हमने। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू भी कुछ लोग साइंस वाले रट गए, कैलोरीफिक वैल्यू। अरे भाई इसमें ज्यादा कोल है, मैक्सिमम कोल है, इसको जलाओगे तो मैक्सिमम पर यूनिट कोल ये ज्यादा एनर्जी देता है, ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू, मोर एफिशिएंट, एफिशिएंसी और कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज्यादा है? इसकी मैक्सिमम होगी, इसकी मिनिमम होगी, इतनी सी बात होगी। डू वी गेट दैट? ट्रू एवरीवन? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपने जो लॉजिक लगाया, सबने लगाया लॉजिक, कुछ ने शील्ड और प्लेटफॉर्म भी लगाया, अपने आप देखा नहीं यार सर तो मना कर रहे हैं, ये वाला लॉजिक तो नहीं लगेगा, और स्क्रीन पर ही है। तो जब व्हेन वो कहते हैं ना, जब प्यास होती है तो पानी खोजने का मन करता है, when the teacher is sort of asking you, पता करके बताओ, सामने लिखा है, जल्दी बताओ, सोचो सोचो सोचो। now somebody is saying सर सल्फर होता है कोल में, अरे भाई कुछ भी हो सकता है, किस कोल में ज्यादा सल्फर होगा जल्दी बताओ, किस कोल में ज्यादा सल्फर होगा? ये पीट और लिग्नाइट में ज्यादा होगा, यस और नो? तो अगर आप थर्मल पावर प्लांट में, इंडिया में साउथ में नेवेली में, तमिलनाडु में नेवेली में लिग्नाइट है, लिग्नाइट के बेस पे थर्मल पावर प्लांट चल रहा है, और जो हमारे नॉर्थ में, जो हमारे छोटा नागपुर में, दामोदर वैली में, वहां बिट्यूमिनस है, तो किस वाले कोल में ज्यादा सल्फर के फ्यूम्स आएंगे? लिग्नाइट में आएंगे। सिंपल सा लॉजिक, आएगा या नहीं आएगा? अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, ये सुनो। सोनूपाल कह रहे हैं आई एम राइट। सोनूपाल जी आप ही राइट हो भाई, आप ही राइट हो, आपको रॉन्ग कह कैसे सकते हैं? आप तब से तो वहीं पे पड़े हुए थे कि ये तो इसका मेटामॉर्फिक फॉर्म है, ये तो इसका मेटामॉर्फिक फॉर्म है। ये सुनो, स्कूल में ही बता दिया था 4 तरह के कोल होते हैं। बाकी सोनूपाल जी आप बिल्कुल, कम तो आप में से कोई सा है ही नहीं, इंग्लिश मीडियम वाला कोई कम है? रिजल्ट कम आ जाएगा वो अलग बात है, कम तो कोई नहीं। किसी को अगर बता दो कुछ चीज कि भाई ये ऐसे नहीं वैसे, तो मेरा गलत थोड़ी था, ना 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 ना, किसी का गलत नहीं था, किसी का गलत नहीं था, बस ये है कि नई चीज सिखा रहा हूं, भी कहता है। अब आते हैं बिगर क्वेश्चन कि कोल मिलता कहां है, वेयर इज इट लोकेटेड? ठीक है, तो ये मैं बता देना चाहता हूं, वैसे तो आपको सब पता ही, जैसे कि आप सब बताते हैं कि मैं एकदम सही था,
85% ऑफ द वर्ल्ड्स कोल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और अराउंड 15% उससे भी कम सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो पहला तो ये क्लू है, इसे क्लू कहते हैं, सोनूपाल जी से क्लू कहते हैं, जब चीजें नहीं पता होती है तो उनको क्लू कहते हैं, लेकिन वैसे आपको पता है तो आप मुझे आंसर भी दे पाएंगे, आई नो दैट। ये सुनो, तो स्कूल में ओनली कंटेंट नो ब्रेनस्टॉर्मिंग, बिल्कुल बिल्कुल। और आज जो है हम अपने कंटेंट पे इतना घमंड है हमें कि हम उसके आगे सोच नहीं सकते। कोई बोला वास्को ड गामा, बोला फॉर्मेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रह गया, वास्को ड गामा ने कहा आज तो कोल समझ आ गया, चार को इंप्रेस करूंगा, अब ऑयल एंड गैस भी बता देते मास्टर जी। अभी बता देंगे, पहले कोल को खत्म कर ले, अगर तुम्हारे उस पर चलने लगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। यस, तो एक हिंट मैंने आपको दी है कि वर्ल्ड का 85% कोल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 15% कोल सदर्न हेमिस्फीयर में। फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला, डू वी गेट दैट? एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा ये बता दूं कि वर्ल्ड का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कोल है, ये फर्स्ट कोल एज में बना। सर ये क्या होता है? वर्ल्ड में कोल दो राउंड्स में बने, वर्ल्ड में कोल दो राउंड्स में बने हैं। एक बना है कार्बोनी फेरस टाइम में, कार्बोनी फेरस टाइम में, ये अराउंड 300 प्लस मिलियन ईयर ओल्ड है। और एक दूसरा बना है सेकेंड कोल एज, ये बना है अराउंड 250 से 2 मिलियन ईयर्स अगो। इसको बोलते हैं टर्शियरी कोल। टर्शियरी कोल, टर्शियरी कोल मतलब न्यू कोल, नया कोल है। और ये क्या है? ओल्ड कोल। जल्दी से बताइए कौन सा कोल बढ़िया होगा, विच कोल विल बी बेटर? मेकाल राकेश कह रहे हैं सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज्यादा है इसलिए। अच्छा बेटा, वैसे कोल जो है ओशन बॉटम में भी मिल सकता है। वाई सर इट इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? बताएंगे बताएंगे। इज एवरीवन ओके? इज एवरीवन विद मी? तो पहले तो मैंने आपको हिंट दिया है, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो एक बात बताऊं, कुछ बताइएगा मुझे अगर आपको याद आता है तो। ये कुछ याद है? ऐसा कुछ हमने कभी बात किया? हैव वी टॉक्ड अबाउट समथिंग लाइक दिस? सोनूपाल जी वेजिटेशन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात नहीं हो रही, जल्दी से। पता नहीं क्यों मैं सोनूपाल जी का कमेंट पढ़ रहा हूँ, जल्दी से बताइए। डज इट रिमाइंड यू एनीथिंग बच्चों? ये कहीं हमने ऐसी बात की है जनरल ज्योग्राफी में? कहाँ की है? सर ये वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस है, दैट दैट 300 million years ago there used to be a land, all land was together, supercontinent called Pangaea. It was surrounded by ocean. Yes or no? Okay. यहां पर हैं सभी लोग, everyone with me? मैं आई एम गिविंग यू अ हिंट, बहुत अच्छी बात है इफ यू रिमेंबर दिस। Now everyone, for coal what is needed? For coal what is needed? Vegetal matter, trees are needed. Yes. For trees what is needed? For trees what is needed? मैंने आपको बताया जनरल ज्योग्राफी में, more heat more moisture. Which belt of earth has more heat more moisture? Which belt of earth has more heat more moisture? Sir, the tropical belt, the equatorial belt. So tell me, 300 million years ago when there was a Pangaea, there would be some vegetation. Where would that vegetation be? उस टाइम कहां वेजिटेशन होने की संभावना थी? X, Y और Z कहां पर होगी? जल्दी बताइए। Where do you expect the forest and more vegetation in the Pangaea? Pangaea में कहां होगी? X, Y और Z। सभी लोग Z लिख रहे हैं। Why are you writing Z? सर बिकॉज यही इक्वेटर के आसपास होगा, तो सारी ये होगी। अच्छा ठीक है, सब लोग यहां पर। रॉ मटेरियल फॉर द कोल मिल गया सबको, एड्रेस मिल गया।
Something happened around 300 million years ago. Something happened, and Pangea started breaking. What will happen to the vegetation? What will happen to the vegetation? ये नीचे चली जाएगी. Will it subduct or not? तो ये क्या बनाएगी? कोल बना देगी. Can I say this is the raw material of coal? Do we get that? So there is a father. He has 2 children. एक पिताजी उनके 2 बच्चे. And he has a lot of wealth. उनके पास घर भी है, जमीन भी है. अब पिताजी मरने वाले हैं एंड वो अपने बच्चों को देना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? What will he do? He will write his वसीयत, will लिखेंगे and will give it to the children. Now think about it. In a patriarchal family, the 2 children is one is girl, one is boy. क्या आपको लगता है कि पेट्रियार्किकल फैमिली में बेटा और बेटी को दोनों को समान दिए जाते हैं? Who will get more? किसको ज्यादा मिलने की संभावना है? सब लोग अभी तक तो कह रहे हैं सर डिवाइड इनटू 50-50, बट डू यू सी दैट इन अ पेट्रियार्किकल फैमिली ऐसा हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है? होता है या नहीं होता है? ना चाहिए, मतलब लड़की का पूरा अधिकार है, लड़की को बराबर मिलना चाहिए भाई. ट्रू. बट एक पितृसत्तात्मक समाज में बेटे को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है कि नहीं मिलती है? ट्रू. पेंजिया है, पेंजिया के 2 बच्चे हैं. कहां जाएगा ये? अगर बराबर चला गया, तो ठीक है. अगर नहीं गया तो क्या होगा? अंगारा टूटेगा. अंगारा विल बिकम व्हाट? अंगारा ये बनेगा, क्या बनेगा? नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया. और गोंडवाना क्या बनेगा? गोंडवाना के कितने टुकड़े हुए? 5 हुए थे ना. साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये 5 पांडव हैं और इधर कौरव हैं. और पेंजिया जो है धृतराष्ट्र है. किसको देगा? जल्दी से बताइए, किसको मिलेगा? हस्तिनापुर. पीपल हु नो समथिंग अबाउट महाभारत, धृतराष्ट्र इज अबाउट टू डिस्ट्रीब्यूट. हस्तिनापुर किसको देगा? पांडव को देगा या कौरवों को देगा? तो प्लीज डू नॉट राइट महाभारत ओवर देयर. Why we have 85% of the coal of the world? Because most of this went to Angara land. सर ऐसा क्यों हुआ, क्यों गया, बताइए. धृतराष्ट्र से पूछ लो यार. इस तरह से टूटा. The thing broke in a way that the vegetal matter rich area went in that side. Is everyone okay? Is everyone okay? So वहां पे लिखना नहीं है कौरव पांडव, ये सिर्फ आपके लिए थोड़ा सा, ताकि आप याद रखें कि 5 पांडवों को कुछ नहीं मिला था, इसलिए. समझ में आ गया? तो फॉर्मूला दे रहा हूं. 85% ऑफ द वर्ल्ड्स कोल इज लोकेटेड बिटवीन 30 to 60 या 65 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. Everyone, this is not a shield वाला फॉर्मूला, that was for metal. कोल का फॉर्मूला अलग है. Is everyone with me on this? Is everyone on this? मुझे पता था कोई ना कोई पूछेगा why, क्यों? अरे भाई इसी तरह से टूटा. एक सोचिए, मतलब आपका अगर शरीर 2 भागों में कर दिया जाए, if your body is cut into 2 parts, हार्ट किधर आएगा? ऊपर वाले हिस्से में. हार्ट ऊपर वाले में क्यों आया? नीचे वाले में क्यों नहीं आया? नीचे और सामान है भाई, वो आ गया नीचे. ऊपर में हार्ट आया. समझ में आया? बोला क्यों? फॉर्मूला मिल गया. 85% ऑफ द वर्ल्ड कोल 30 to 65 नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी गोलार्ध में है. कौन सा कोल है? एंथ्रासाइट कोल है. एंथ्रासाइट रिमेंबर बढ़िया कोयला होता है. और क्या है? ये कार्बोनिफेरस टाइम में मिला. कार्बन का है. डिड आई मेक योर लाइफ इजी? लेकिन अभी भी सर फिर गया क्यों उधर? अभी बताइए. फिर बता रहा हूं. इमेजिन करो, यहां से कटेगा तो ऊपर वाले में क्या क्या जाएगा, और नीचे का सोच लो क्या क्या लिखने वाले हो. नीचे क्या क्या गया, ये सुनो. दोस्तों कनाडा, रशिया, यूरोप के पास ज्यादा है. शक्ति प्रकाश बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर चाइना के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं दिख रही है मुझे. उस लैटिट्यूड में बेटा चाइना भी आएगा, मंगोलिया भी आएगा. तो नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूरोप पूरा का पूरा, रशिया,
आगे बढ़ो और मंगोलिया और चाइना में भी लो। इज एवरीवन ओके? सर ओशन में कोल कैसे आए, कहां है? ओशन में क्या जो आज ओशन है वो हमेशा ही ओशन था जब से अर्थ बनी है? यस और नो? थिंग्स हैव बीन चेंजिंग ना, वेजिटल मैटर तो आ रहा है जा रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? रिट्स कह रहा है विच इज पुअर क्वालिटी कोल। रिट्स यादव बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हो और फालतू के कमेंट कर रहे हो, उस पर हम बात कर चुके हैं। इज एवरीवन ओके विद दिस? चलें अब वर्ल्ड का कोल देख लें, जल्दी से लिखना शुरू करते हैं। वर्ल्ड का कोल नॉर्थ अमेरिका, पहले बढ़िया वाले लिख लें जहां पर मिलेगा। नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, लिखते चले जाइए जल्दी से। दो प्रोविंस आपको बताए थे, प्रेरी प्रोविंसेस, इफ यू रिमेंबर, दिखाए भी थे। पीपल हु हैव बीन रेगुलर इन माय क्लास यू वुड रिमेंबर दीज टू नेम्स, अल्बर्टा एंड सस्केचुवान। ये कौन से थे? प्रेरी प्रोविंसेस, प्रेरी प्रोविंस। के बाद यूएसए, यूएसए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एपेलेशंस, एपेलेशन इज सच एन अमेजिंग प्लेस। यहाँ कोयला भी मिल गया, लोहा भी मिल गया, तो दिस बिकम्स वेरी वेरी अमेजिंग फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एपेलेशंस में आपके पास एक स्टेट मैंने लिखवाई थी, पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया यहां पर है, एपेलेशंस में भरा हुआ है। उसके बाद है मिड प्रेरीज, मिड प्रेरी बेल्ट, मिड प्रेरी बेल्ट, ये यूएसए का हो गया। इज एवरीवन विद मी ऑन दिस? ठीक है, उसके बाद क्या है, और ये वही बेल्ट है 30 to 60, अगर मुझे बनाना हो ना, रिमेंबर दिस इज 30 डिग्रीज, दिस इज 60 डिग्रीज। तो यहां पर कोल है, एल्बर्टा और सस्केचुवान, यहां पर कोल है, यहां पर कोल है। वन ऑफ द लार्जेस्ट माइंस इन द कोल रिजर्व्स यहीं पर है। कोल 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 और इधर भी कोल है। डू वी गेट दैट? इतना याद करना है, काम बन जाएगा। एक दो लोकेशन से रिकॉर्ड वाली वो मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद साउथ अमेरिका में आते, साउथ अमेरिका में नहीं आ रहे, वी आर नॉट गोइंग टू साउथ अमेरिका, वी आर गोइंग टू यूरोप। क्यों जा रहे हैं यूरोप में एवरीवन, व्हाई नॉट साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका तो गोंडवाना है ना, वहां तो ज्यादा कोल है ही नहीं, तो वी आर कमिंग टू दिस। इज एवरीवन ओके? कोल इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ जनरेटिंग पावर इन यूएसए। बेटा प्राइमरी सोर्स इंडिया में, इंडिया में कोल जनरेट करता है। यूरोप में कोल कहाँ पर होगा? तो यूरोप में एक तो यूके है, यूके का मिडलैंड बेसिन, मैं यहां पर लिख रहा हूं फिनिश्ड, एग्जॉस्टेड, खत्म हो गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इट स्टार्टेड, इट्स गॉन। तो असली कोल किसके पास है? वो है फ्रांस और जर्मनी के पास। फ्रांस के पास क्या है? रिमेंबर दिस प्लेस वी टॉक्ड अबाउट फॉर आयरन ऑल्सो, अल्साक लोरेन, इस रीजन में है, ठीक है। उसके बाद जर्मनी में आते हैं, जर्मनी में आता है रूर रिवर और उसकी सहायक नदी सार, रूर सार रिवर बेसिन। और फ्रांस में आप लिख सकते हैं सांब्रे, नदी का नाम है सांब्रे म्यूज रिवर बेसिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन, यूक्रेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर बात हुई है अभी भी आपने देखा है, डोनेट्स्क, डोनेट्स्क, ओल्ड नेम डोनेट्स्क का क्या था? डॉनबास। स्ट्रेट अवे एग्जाम ओरिएंटेड नाम और कुछ नहीं सोचना इसमें, जर्मनी, यूके, फ्रांस। इज एवरीवन ओके? बेटा स्ट्रासबर्ग कोई लिख रहा है, बेटा स्ट्रासबर्ग जो था वहां पर स्टील प्लांट था, उनका स्टील प्लांट था, तो स्टील प्लांट में वहां पर आयन भी है और वहां पर और क्या है? स्टील प्लांट में आयन भी है और क्या है? वो भी मिल गया। यहां तक आगे। अब यूरोप में ही आता है बड़ा स्टेशन
रशिया का, रशिया। तो रशिया को कैन आई टेक इट एज अ पार्ट ऑफ CIS, एशिया प्लस रशिया, ऐसे कर दूं? आपके नोट्स में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो रशिया से शुरू करते हैं। रशिया ऑन द यूरोप साइड, यूरोप साइड में पेचोरा रिवर वैली, पेचोरा रिवर वैली, वोल्गा बेसिन, वोल्गा बेसिन। यूरोप का एशियन या साइबेरियन साइड, यहां पर आएगा नोवो कुजनेट्स्क। अभी आपने डोनेट्स्क सुना था यूक्रेन में, यहां पर है कुजनेट्स्क। कुजनेट्स्क का पुराना नाम, ओल्ड नेम यूज्ड टू बी कुजबास। डोनेट्स्क पुराना नाम डॉनबास, कुजनेट्स्क दिस थिंग। इरकुत्स्क, लेना रिवर बेसिन, येनेसी रिवर। इज एवरीवन ओके? वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिजर्व्स यूएस के पास, अराउंड 24%। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व्स आर विद यूएस, वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व्स आर विद रशिया। इसके पास कितने? अराउंड 20%। तो 20-25%, 45% तो इन्हीं में मामला निपट गया। 45% तो यही ले जाते हैं दोनों के दोनों। इज एवरीवन ओके? The western countries have too much coal but their primary energy resource is not coal. Why? अभी तो आप ही ने तो बताया कि कोल इज नॉट अ क्लीन फ्यूल। तो जब वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो कोल को नहीं यूज कर रहे। आप खुद ही सोच, इंडिया एंड चाइना आर डेवलपिंग कंट्रीज, दे डोंट हैव चीपर ऑल्टरनेटिव्स। तो हम कोल पर ही वो है। ये तो इसीलिए मैंने कहा ना, व्हाट आर द इश्यूज, किसी ने इस इशू पे बात ही नहीं किया। somebody said प्रॉब्लम्स ही होते हैं। इश्यूज ये है कि आई गेव अ रेटिंग, कोल मोस्ट पोल्यूटिंग, देन ऑयल एंड देन गैस। So these developed countries are gradually making a transition, leaving the coal and switching over to, अभी क्या shortage हुई वर्ल्ड में because of Ukraine crisis? गैस की, नेचुरल गैस नहीं मिल रहा था ना, they were dependent on natural gas. So that is what we are talking about. सर रिवर बेसिन का कोल से कोई कनेक्शन है, वहीं पर क्यों मिलता है? तो बच्चों कल मैंने आपको माइनिंग बताई थी। एवरीवन, डिड आई टेल यू अबाउट माइनिंग? डिड आई टेल यू अबाउट ओपन कास्ट माइंस? यस और नो? So think about it, this is land surface and here is coal, this is coal. तो बहुत ऊपर चीजें। अब सोचिए यहां से रिवर बह रही है, will the river cut the land surface? cut and expose the coal? तो ये जो रिवर्स हैं, रूर रिवर इन जर्मनी, दामोदर रिवर इन झारखंड, इन्होंने क्या किया है, नदी घाटियां जब काटती हैं, गोदावरी जब ये काटती हैं तो रीच द कोल बेड। तो इनसे हमें पता चल जाता है, इसलिए नदी घाटियों में अक्सर आपको कोल सुनाई देगा। इज एवरीवन ओके? आर वी ओके विद दिस? सर बट ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दे यूज देयर कोल ड्यूरिंग दैट पीरियड। अरे भाई वही तो बता रहे हैं कि उस टाइम उन्होंने यूज किया, उन्होंने बहुत पोल्यूशन किया। विद टाइम दे हैव रियलाइज कि वी हैव पोल्यूटेड, नाउ वी शुड गो टू क्लीनर ऑप्शन। कैन वी गो? डू वी हैव द मनी फॉर दैट? यस। डू वी हैव द टेक्नोलॉजी फॉर दैट? यस। अब इंडिया आता है, इंडिया कहता है डू वी हैव द मनी टू रिप्लेस कोल? नो। डू वी हैव द टेक्नोलॉजी टू रिप्लेस कोल? नो। डू वी नीड मोर एनर्जी? यस। तो क्या करेंगे, हमें कोल पे ही चलना पड़ेगा। फिर इंडिया क्या करता है, वर्ल्ड में जब जाता है, whenever the debate happens on removing coal, India goes and puts a plea. India says that whatever global warming is happening is because of you developed countries. आपके emissions को इंडिया ने नाम दिया historic emissions. In the past you people have burnt so much of coal. The present day global warming is because of this. अब मैं उस चैप्टर में नहीं जाना चाह रहा हूं, हिस्टोरिकल एमिशन और दिस थिंग क्लाइमेट जस्टिस में, बिकॉज आपके एनवायरमेंट टीचर उस पर बताएंगे। इज एवरीवन ओके? ठीक है, तो रशिया भी मिल गया। रशिया में हमने दो नदियां भी कर ली,
और उधर भी नदियां की हैं। वाई रिवर बेसिन आपको समझ में आएगा, रिवर काट के वहां तक जाती है, सो दे एक्सपोज इट। रशिया के बाद बड़ा है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में अगर आप खोलेंगे तो कजाकिस्तान में एक बड़ा एरिया है, ये भी नाम याद नहीं आ रहा, अभी ब्लैंक छोड़ दो, थोड़ी देर में नाम याद आएगा तो बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं मंगोलिया। मंगोलिया में फिर गोबी डेजर्ट। मंगोलिया में गोबी डेजर्ट। इज एवरीवन ओके? एवरीवन ओके? अब एशिया के बड़े प्लेयर्स कौन है? चाइना और इंडिया। चाइना, चाइना में फिर आएगा मंचूरियन प्लेटू। मंचूरियन प्लेटू आई होप आपको मिल गया होगा, जस्ट टचिंग नॉर्थ कोरिया का जो बॉर्डर है यालू रिवर से, दैट इज द पार्ट वेयर जापान हैड एंटर्ड मंचूरियन प्लेटू। यहां पर कुछ नाम अगर करने हो, कुशुन, जिलिन, आंशान, अगर करने हो तो आप याद कर सकते, ठीक है, अदरवाइज मंचूरियन प्लेट। उसके बाद दो मिनरल रिच आपको दिखाए थे मैंने प्रोविंस, टैंक्सी प्रोविंस एंड शांक्सी प्रोविंस। टैंक्सी एंड शांक्सी प्रोविंस। एक मैंने आपको बताया था सदर्न गोबी डेजर्ट के पास है बाओ टाओ। बाओ टाओ, ये तीन आपको लिखने चाहिए, नए मंगोल रीजन में ये आएगा। इज एवरीवन ओके? आर वी ओके विद दैट? अब इंडिया आ जाते हैं। इंडिया में इंपॉर्टेंट रिवर वैलीज हैं। रिवर वैलीज मोस्ट ऑफ इट कहां पर मिल रहा है? दामोदर में। दामोदर, सोन, गोदावरी, और ये कोल। अभी थोड़ी देर में इस पर और बात करेंगे। वी आर ऑन दिस। इज एवरीवन ओके? एवरीवन क्लियर? हाँ, दीपिका बोल रही है कि सर यहाँ पे जो साइट है उसका नाम है कारागंडा। ये आपने कहा कारागंडा, कारागंडा। इज एवरीवन ओके? तो कजाकिस्तान को पूरा कर लीजिए। अनुपाल जी यहाँ पे फोकस करिए, फिर आप कहते हैं मैं कभी गलत नहीं होता हूं, ठीक है? इधर उधर का फिर बहाना बनाएंगे, इधर फोकस करिए। इज एवरीवन ओके? तो अभी हमने क्या किया, मोस्टली किसकी बात की? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पास 85% कोल है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, चाइना, इंडिया, सब लोगों ने लिख लिया। सिर्फ कारागंडा लिखना है, ओनली कारागंडा, ओनली कारागंडा, बाकी किसी नाम की चिंता नहीं करनी। कारागंडा इज देयर। एवरीवन विद मी? चलिए, अब आते हैं साउथ अमेरिका। डेफिशिएंट एज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। कितना इजी कर दिया मैंने। और क्या है ये? अफ्रीका। डेफिशिएंट एज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड कर दें। फिर भी यहां पर हमें कुछ कोलंबिया और वेनेजुएला, वेनेजुएला लिख देता हूं, वेनेजुएला में थोड़ा सा मिला है इन रिवर मैग्डलिना, थोड़ा सा मिलता है। अफ्रीका इज डेफिशिएंट बट देयर आर सम वैंकी कोलफील्ड, वैंकी कोलफील्ड, वेयर इज दिस? जिम्बाब्वे, ठीक है। और साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका स्पेशल है, ट्रांसवाल प्रोविंस, कल भी आपको दिखाया। और जितने भी लोगों के पास ऑक्सफोर्ड एटलस है, कल मैंने ऑक्सफोर्ड मंगाई है, ऑक्सफोर्ड में सब दिया हुआ है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ऑक्सफोर्ड एटलस काफी डिटेल देती है, तो प्लीज यूज इट, देखिएगा जरूर, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर थोड़ा सा मिल गया। सर कैसे मिल सकता है, आपने तो कहा सब उधर था। अरे भाई 85% ही तो उधर था, बाकी 15 तो इधर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? ट्रू और नॉट? और 15 में फिर कब बना? बाद में बना। रिमेंबर 2 एपिसोड्स हुए, ये कार्बोनिफेरस नहीं होगा। इज एवरीवन ओके?
एवरीवन विद दिस? तो चाइना में मंचूरियन प्लेटू, शैंक्सी शांक्सी बाओटाओ, एवरीवन विद मी ऑन दिस? आर वी ओके? अब हम आते हैं अंटार्कटिका। डेफिशिएंट एज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, आई डोंट। अंटार्कटिका वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। अंटार्कटिका वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, तो इसलिए नहीं होना चाहिए। तो गोंडवाना वाला तो नहीं मिला उनको, वो बेल्ट तो दे डिड नॉट गेट द बेल्ट, वेजिटेशन बेल्ट। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज अंटार्कटिका में कोई भी कंट्री जाके कॉलोनाइज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द अंटार्कटिक ट्रीटी। सेकेंड थिंग इज द लैंड ऑफ अंटार्कटिक इज नॉट एट सी लेवल, इट इज ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर बिलो सी लेवल। वाई? वेट ऑफ द आइस, आइस ने लैंड को नीचे कर दिया। वेट ऑफ द आइस, दैट इज आइसोस्टैटिक सिंकिंग हैज हैपेंड, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द आइस इट हैज गॉन डाउन। ये सुनो, ट्रू? तो वहां पर एक तो अलाउड ही नहीं है। अंटार्कटिक ट्रीटी सेज दैट नो country has any claim on Antarctic resources. Antarctica was declared as continent of science. You can set up your experiment centers, nothing else. Is everyone okay? Are we okay with this? अब हम कहां पर आते हैं? किसी ने लिखा सर इंडिया में कैसे कोल है? इंडिया तो गोंडवाना का था, इंडिया तो गोंडवाना। तो रिमेंबर, इंडिया इज इंडिया, इंडिया एकदम सेल्फ मेड है, इंडिया एकदम सेल्फ मेड है। तो इंडिया गोंडवाना में मैंने आपको स्टोरी पहले भी बताई थी, इंडिया वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना। दिस इज व्हाट? यूरेशिया। इंडिया वॉज अटैच टू द लॉयल वाइफ। क्या था? लॉयल वाइफ ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने छोड़ दिया और इंडिया चल पड़ा इंटर हेमिस्फेरिकल, इंटर कॉन्टिनेंटल, इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट मैरिज। जाएगा? छोड़कर गया। ऐसा जाएगा तो कोई अलाउ करेगा? पहुंच गया ये, यहां तक पहुंच, दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे टाइप्स, इंडिया छोड़ के ऊपर पहुंच गया। ट्रू? ऊपर जब पहुंचा तो क्या हुआ? सर इंडिया देवभूमि है, यहां तो देव वाला काम कम ही हो रहा है। वैसे यहां मिल गया अमरीश पुरी, दुनिया की सबसे ऊंची दीवार भी बन गई, नॉट अलाउड। और फिर 2-4 ने पकड़ के पिटाई भी की तो कमर भी टूट गई। इंडिया एक्सपीरियंस रिफ्टिंग। इंडिया में क्या हो गया? इंडिया की प्लेट में क्रैक आ गया। इंडियाज प्लेट इन इट्स नॉर्थवर्ड जर्नी एक्सपीरियंस क्रैक्स। अब एक बात बताइए, व्हेन इंडिया इज क्रॉसिंग इक्वेटर, विल इंडिया बी इन द ट्रॉपिकल बेल्ट? यस और नो? व्हेन इंडिया इज क्रॉसिंग द इक्वेटर और व्हेन इट वाज पैंजिया, तो इंडिया के पास अपनी वेजिटेशन भी होगी ना। इंडिया हैड इट्स ओन वेजिटेशन ऑन इट्स प्लेट, एंड एज इंडिया इज मूविंग, व्हाट विल हैपन? इन दोस क्रैक्स द वेजिटेशन विल गो, the vegetation will go, and will that vegetation turn into coal? ये देखो अभी भी वोल्केनो पे अटका हुआ, कौन है वोल्केनो वाला? वोल्केनो से दूर रहना बेटा, वोल्केनो से वो नहीं होगा, कोल नहीं बनता है, कोल डिस्ट्रॉय हो जाएगा उससे। इज एवरीवन ओके? एवरीवन विद मी ऑन दिस? नीले सिन्हा जी आप आ गए नाम बदल कर, कोई आंसर दे नहीं रहा हूं मैं। एवरीवन ओके? तो इंडिया में कोल बन गया। इंडिया का कोल इज अ सेपरेट कोल, अपना कोल, एकदम यूनिक कोल है। हमें कुछ नहीं मिला धृतराष्ट्र से, हमने अपना बनाया, सेल्फ मेड। हमारे कोल का नाम क्या है? इंडिया के कोल का नाम यूनिक कोल। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कोल? Gondwana coal. Yes. Which coal is superior? World's coal or our coal? Which coal is superior?
वर्ल्ड कोल और आवर कोल, कौन सा सुपीरियर है जल्दी बताओ। आत्मनिर्भर भारत, हाँ खुद ही बनाया भाई हमने सब। विच कोल इज सुपीरियर, इंडियन कोल और वर्ल्ड कोल? देखो जितने भी देशभक्त हैं वो सारे के सारे कह रहे हैं कि हमारा कोल सुपीरियर है। बेटा देशभक्ति नहीं, साइंस लगाओ। इंडियन कोल इज अ रीसेंट कोल, तो हमारा कोल बिट्यूमिनस है, बाद में बना है। ये जो अचानक फर्जी वाली देशभक्ति आ जाती है ना, जो सारे के सारे लॉजिक को उड़ा देती है, वो वाली। नहीं नहीं हमारा कोल सबसे बढ़िया भाई, हमारा कोल है इसलिए बढ़िया। अरे भाई हमारा कोल तो अभी बना है ना, अभी बना है। वो कोल कब बना था? पेंजिया के टाइम में, 300 मिलियन साल पहले। इतना पढ़ाने के बाद भी तुम जो हो सर जी हमारा कोल, मैं भी, हमारा सब बढ़िया है, सबसे बढ़िया विश्व गुरु, कैसा ना, उससे कम हम बात ही नहीं करते। लेकिन लॉजिक तो समझो। तो आर कोल इज बिट्यूमिनस, और ये जो कंट्रीज के कोल थे ये सारे क्या हैं? ये एंथ्रासाइट है। तो इंडिया का अलग है। और ये भी बता दूं, इंडिया के पास प्लस, इंडिया के पास और भी टर्शियरी कोल है, जिसमें इंडिया के पास लिग्नाइट भी है और बिट्यूमिनस भी। इज एवरीवन ओके? इंडिया का कोल इज बिट्यूमिनस एंड लिग्नाइट। आर वी क्लियर? क्लियर है सभी लोग? तो हमारा कोल बाद में बना है, जब गोंडवाना हो गया और वो अंगारा चला गया, उनके पास तो पहली पेंजिया की वेल्थ चली गई है। हम इन द प्रोसेस व्हेन वी वेंट अप एंड रिफ्टिंग हैपेंड इन इंडिया, क्रैक्स हैपेंड, उसमें हमारा वेजिटेशन गया, तो हमारा बाद का है। इज एवरीवन ओके? आर वी क्लियर? कोई कह रहा है हमारा कोल आगे जाके बढ़िया बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, पुरानी शराब है, रखे रखो, उसके बाद जो है कुछ 40-50 मिलियन ईयर्स बाद या 100 मिलियन ईयर्स बाद आपके जो बच्चे होंगे, क्योंकि आप तो आईएएस हो गए थे इसी जन्म में, तो आपकी जो जनरेशन्स होंगी उनको मिलेगा कोल। इज एवरीवन ओके? तो ये इंडिया हो गया, इंडिया का भी केस हो गया। ऐसा ही केस ऑस्ट्रेलिया का भी। तो ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो हैज कोल। ऑस्ट्रेलिया के पास वर्ल्ड का 12% कोल के करीब है। जैसे मैंने आपको कहा ना, सदर्न हेमिस्फीयर में कुछ 15% है, तो 12-13% ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास है। और ऑस्ट्रेलिया का कोल तो आपको पता है कहां पर है, जल्दी से बताइए कितने पीएम? ऑस्ट्रेलिया कोल, हाउ मेनी इफ यू रिमेंबर, कितने पीएम, कितने बजे ऑस्ट्रेलिया का कोल? एक ही प्रांत में, न्यू साउथ वेल्स। क्या नाम है उसका, जगह का नाम? न्यू कासल। रिमेंबर दैट। हो गया कोल। कोल कैसे बनता है, क्यों बनता है, कोल को लेकर कितने सारे इश्यूज भी आ गए, जरूरी भी है, उसके बिना इंडिया एंड चाइना का चल भी नहीं सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें यार कोल को लेकर। और एक और बात बताऊं, कोल इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर एज अ कैटलिस्ट ऑल्सो फॉर दिस थिंग, स्टील मेकिंग ऑल्सो। बहुत सारी चीजों में कोल चाहिए। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ उसमें वही है। तो आई होप यू रिमेंबर दैट। तो सभी हो गया, एवरीथिंग डन। कोल का डिस्ट्रीब्यूशन, चलें थोड़ा सा स्लाइड भी दिखा दें आपको। मेरे ख्याल से स्लाइड डाल दी गई है। अच्छा लिथियम का आया था, लिथियम अभी बता। कोल रिसोर्सेस 85% कहां पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 15% सदर्न हेमिस्फीयर में है। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड कोल इज लोकेटेड इन जस्ट 10 कंट्रीज। यू कैन अंडरस्टैंड इस बेल्ट में ज्यादा होगा। दिखाई दे रहा है बेल्ट, दिखाई दे रही है कोल की बेल्ट, ठीक है। इलस्ट्रेट करके दे रहा हूं ताकि दिमाग में वो स्टिक हो जाए। ये सुनो नीले, बार बार वो चीज मत लिखो, तुम गलत ही पूछते हो, अभी भी गलत पूछ रहे हो। क्यों पूछ रहे हो? बदतमीजी बंद करो नीले, बहुत हो गया। ये सुनो, वही वाला स्टेटमेंट बोल चुका हूं तुम्हें, क्यों वो कर रहे हो? The US tops the list holding more than 1/5. So as I told you कि around 25% उसके बाद है। China ranks third. China के पास resources भी हैं but biggest producer भी है, consumer भी है। So that's what we are talking about. ये आपका पेंजिया 300 मिलियन ईयर्स ये इस तरह से बन रहा था। चीजें जो इक्वेटर के पास थी बनी, उसके बाद टूटना शुरू हुआ। Coal is sedimentary rock formed from plants that flourish millions of years. Generally tropical areas में होते हैं। I've already explained that. कार्बोनिफेरस पीरियड इज द फर्स्ट कोल एज। ये कब है? 360 मिलियन टू 290, तो 300 मिलियन के आसपास वाला इज गुड कोल। हमारा कोल उसके बाद आता है। सेकंड कोल इज 290 टू 1.6 मिलियन। 1.6 तो अभी है, ये तो एकदम टर्शरी कोल है। इज एवरीवन ओके विद दैट? दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। कोल का जो 2019-20 का जो डेटा था दैट इज देयर। प्रोड्यूसर में चाइना, इंडिया। फिर आप देखेंगे प्रोडक्शन तो डिपेंड्स, जैसे मैंने कहा यूरोप इतना ज्यादा प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, दैट्स ऑल्सो
what we are looking at. Is everyone with me? तो यूएस में ये कोल रीजन मैंने आपको मैप में भी बताया, दिस इज द एपेलेशियन रीजन, ये है इनका पाउडर रिवर बेसिन. तो पाउडर रिवर बेसिन इन व्योमिंग इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कोल माइन बाय रिजर्व. पाउडर रिवर बेसिन, ये स्लाइड्स आपके पास काफी पहुंच गई हैं, आई थिंक ये वाली भी डाल दी गई, तो प्लीज हैव अ लुक एट दैट ऑल्सो. तो ये यूएस का था, ये रशिया का है, रशिया के पास कितना है, अराउंड 15%. साथ में मैंने यूक्रेन और इसको भी जोड़ लिया था बिकॉज CIS में अराउंड 20% हो जाता है. तो दिस इज 3.3. और डोनेट्स्क भी आप लिख चुके हैं, कारागंडा भी आप लिख चुके हैं, एंड अदर थिंग्स आर देयर, पचोरा बेसिन, ऑल द थिंग्स जो मैंने बताई वो पहले आप देख चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स एंड क्वींसलैंड में है. चाइना के पास अराउंड 13% है, वो भी वी हैव लुक्ड एट. शैंक्सी एंड इनर मंगोलिया. इनर मंगोलिया इज द बॉर्डर ऑफ गोबी डेजर्ट वेयर आई टोल्ड यू बाउटाओ. चाइना इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ कोल. इंडिया के पास अराउंड 10% है. जर्मनी हैज अ कोल रिजर्व, बट फिर वही वाली बात है, दे आर नॉट यूजिंग इट. बट द इंपॉर्टेंट प्लेस इज कॉल्ड रूर. Always remember, Ruhr is very, very popular. Ruhr and Rhine, this is the region where we have coal. Is everyone okay? Are we clear? Sir, I am understand everything, but I am not capable to write in proper way and I forget easily. आकांक्षा राय जी, आपकी सेंटेंस पढ़ के मुझे पता चलता है आपकी इंग्लिश बहुत वीक है. प्लीज वर्क ऑन योर लैंग्वेज. ठीक है. सेकंड थिंग इज प्लीज वर्क ऑन योर ब्रेनस्टॉर्मिंग. आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी वीक है. तो क्लास के स्टार्ट में ही मैंने पूरे बैच को कहा कि बिना ब्रेनस्टॉर्मिंग तो आप आंसर लिखने की सोचिए भी मत. तो ये बड़ी बड़ी बात मत करिए कि मैं भूल जाती हूँ, सभी लोग भूल जाते हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉल. आपकी रिकॉल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है. आप में से मेजॉरिटी लोग जो यहाँ क्लास में बैठे हैं वो ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते. यू जस्ट वांट समवन टू डिक्टेट, बाद में रटेंगे. आप करके देख लीजिए, कोई एग्जाम अगर यूपीएससी के लेवल का एग्जाम आप रटान पे करके देखना चाहते, करके देख लीजिए. आपका करियर है, एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए और देखिए कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कितना आपको लिबरेट कर सकती है. इज एवरीवन ओके? तो ये हुआ कोल. कोल खत्म. ऑयल एंड गैस पे आते हैं. जल्दी से बताइए, ऑयल एंड गैस. ये ऑयल एंड गैस कैसे बनता है? कोल तो हमें समझ में आ गया, ऑयल एंड गैस कैसे बनता है? पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम. तो पेट्रोलियम, आई डोंट थिंक सो बहुत से लोगों ने एक्चुअली पेट्रोलियम देखा होगा. आप देखते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन. क्रूड पेट्रोलियम इज अ थिक, डार्क, विस्कस लिक्विड विद कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन. इसको प्यूरिफाई किया जाता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कुछ लोगों को अगर स्कूल में याद हो तो इस तरह का एक फ्रैक्शनेटिंग टावर स्कूल में पढ़ाया जाता है. यहां से वेपर आएंगे और इनमें कलेक्ट हो जाता है. एक में आएगा पेट्रोल, फिर केरोसिन, फिर डीजल, ऐसा कुछ. और नीचे भारी भारी चीजें गिरती हैं जिसमें क्या होता है, ग्रीस, वैक्स, वैसलीन, आसफल्ट, ये हेवियर हैं. और टॉप पर क्या रहती है, नेचुरल गैस. नेचुरल गैस को मीथेन कहते हैं. तो ये प्रोसेस कहलाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. साइंस का टीचर नहीं हूं इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूं. तो इट इज ऑल्सो ट्रैप्ड बिटवीन फॉसिल फ्यूल्स. आयुष जी ये गलत आंसर है. तो 9th में पढ़ा था शायद, 12th की केमिस्ट्री में पढ़ा था. अच्छी बात है. डेड एंड वेस्ट मैटर ऑफ डेड डिकम्पोजिशन आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स. तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये तो फॉसिल फ्यूल है, ये भी फॉसिल फ्यूल है ना, तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कोल? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कोल? कोल में भी तो ऐसे ही था. कोल एंड ऑयल के फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है? सर इट इज मोस्टली फाउंड इन वाटर. ऐसा तो नहीं है, असम में मिलता है. असम में है ना, ऐसा नहीं है कि पानी में मिलता है. हाँ, जिसको आप वाटर कह रहे हो, वाटर नहीं मिलेगा तो रॉक्स में, ऑफ शोर. तो पेट्रोल क्या होता है, डिफरेंस फ्रॉम डीजल? बेटा पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सब उसकी सफाई से निकलते हैं. जब क्रूड पेट्रोलियम को जब उसको डिस्टिल किया जाता है उसमें अलग अलग चीजें पाई जाती हैं.
तो अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन देयर कार्बन एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग चीजें निकलती, उन्हें कहा जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो जेट एविएशन फ्यूल, हवाई जहाज जिससे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एविएशन फ्यूल, ठीक है। केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, पेट्रोल को यूएसए में गैसोलीन कहते हैं, ये फ्यूल्स निकलते हैं, ये उसके पदार्थ हैं, उत्पाद हैं वो। रिमेन्स ऑफ एनिमल, ओहो, मतलब अगर भैंस को मारो, भैंस डेंजरस है, किसी के धर्म में आ सकता है, अगर व्हेल मछली को गाड़ा तो तेल, और पेड़ को गाड़ा तो कोयला, ऐसा कहना चाह रहे हो? व्हेल है तो तेल है, और कोयला है पेड़ से। एनिमल एंड ह्यूमन डेड, सर आदमी को मारो और जानवर को मारो, उनको दबा दो तो उनका तेल निकलेगा, ये बढ़िया बताया यार। सर इट इज फर्मेंटेड प्रोसेस। सोनू पाल जी ये कहाँ से लाते हो ये शब्द फर्मेंटेड? सर आप बना रहे हो क्या फर्मेंट करके अंगूरों को, है ना सोनू पाल जी? लेकिन आप तो गलत बोलते ही नहीं हो कैसे आपको कर सकता हूँ? जवाब जरूर देते हैं, हौसला है भाई सोनू पाल। फर्मेंट कर रहा है, शराब बना रहा है। एनिमल डिकम्पोजिशन, सर अगर वेल डाली तो तेल है, पेड़ डाला तो ये। सर डायनासोर, अच्छा नीले का क्वेश्चन, नीले क्यों करते हो यार ये? खैर नीले की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होता है, एंड आई सेड नीले विल, यू शुड नॉट अलाउ नीले टू हाईजैक योर क्लास। सोनूपाल जी फर्मेंट करेंगे? आइए फर्मेंट करना शुरू करते, ताड़ी बनाएंगे। तो पहली बात, ऐसा कुछ नहीं है कि एनिमल डालेगा तो तेल निकलेगा और प्लांट डालेगा तो कोल निकलेगा, दैट्स अ रॉन्ग आइडिया, ठीक है। तो ऑयल के लिए दीज आर फॉसिल्स ऑफ मरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव हैं ये, प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होने, दे शुड बी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इज एवरीवन ओके? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सूक्ष्म जीव है उनसे बनता है तेल। कैसे बनता है उसको भी देखते हैं। कोल कैसे बन रहा था? कार्बोनाइजेशन, द प्रोसेस वाज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। लेट्स लुक एट ऑयल। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, दिस इज ओशन, ठीक है। ओशन में देयर आर मरीन ऑर्गेनिज्म, से फॉर एग्जांपल फिश है, कुछ भी है, प्लांट्स हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। व्हेन दे डाई, जब ये मर जाएंगे तो विल देयर रिमेन्स गो डाउन एंड गेट कलेक्टेड हेयर? यस और नो? डेड माइक्रोस्कोपिक रिमेन्स, डेड माइक्रोस्कोपिक रिमेन्स ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स। समझ में आया पहली चीज? तो ये बनेगा कच्चा माल, दिस इज द रॉ मटेरियल, नॉट ट्रीज। दैट एक और प्रोसेस बताना चाहता हूं आपको। समटाइम्स द वाटर फ्रॉम द ओशन, बिकॉज ऑफ सी लेवल राइज, नॉट बिकॉज ऑफ वेव्स बट सी लेवल राइज, दैट कैन एंटर ऑन लैंड और इधर आ जाएगा, ठीक है। अपने साथ क्या लेकर आएगा? ऑल दिस marine sediment, marine biotic sediment. Everyone, do you get that? Raw material, दो जगह raw material तैयार है, X और Y. So it is not plants, it is not plants, it is microorganisms of marine origin. अगर किसी को उदाहरण चाहिए तो can I say an example can be planktons, zooplankton, phytoplankton. Yes or no? Is everyone okay? Everyone okay with this? तो ये क्या होते हैं? प्लैंकटन। और जब पानी इधर आ जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मरीन ट्रांसग्रेशन। और ये शैलो डिप्रेशन है, शैलो डिप्रेशंस। इन डिप्रेशंस को इन ज्योग्राफी में जियोसिंक्लाइन कहते हैं, जियोसिंक्लाइन, द वोकैबुलरी वर्ड इज जियोसिंक्लाइन। तो व्हेन मरीन वाटर थ्रू मरीन transgression has entered shallow geosyncline, over a period of time it brought the sediments,
and here also sediments are there. When X and Y, when they undergo what? Subduction. अगर ये दब गए कहीं पर, अगर ये बेरी हो गए, इफ दे गेट सबडक्टेड, कलीम अंसारी कह रहे हैं व्हाट इज माइक्रोसर। कलीम, मैंने आपका नाम नोट कर लिया, काफी देर से आप ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो, तो आप पूछते ही रहोगे। यहाँ पे लिखा है प्लैंकटन। करीम, आज आपने काफी सवाल ऐसे पूछे हैं जिनसे आप नजर में आए हो कि यार ये छात्र क्या चाहता है ना। अगर आप आईएएस देना चाह रहे हो और अगर 12th क्लास में भी और माइक्रो नहीं जानते, आजकल तो मेरे ख्याल से मोबाइल फोन में भी माइक्रो सिम आता है, तो अगर माइक्रो का खेला खेलना है तो करीम मत करो यार, दिखाई देता है। एवरीवन ओके? सो एक्स एंड वाई यहाँ पर क्या है, इस एरिया में रॉ मटेरियल कच्चा माल फॉर ऑयल, ये सुनो, इनका क्या हो गया? सबडक्शन हो गया। इफ दे अंडरगो मरीन सबडक्शन, इज एवरीवन ओके? सबडक्शन हो गया। व्हेन दे गेट सबडक्टेड तो क्या होगा? अगर ये दब जाएंगे तो क्या होगा? हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एनएरोबिक कंडीशन होंगी। सर ये तो कोल में भी हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी, बट कोल में क्या था? सेल्यूलोस, वेजिटल मैटर था, पादपों का वेजिटल मैटर सेल्यूलोस था। लेकिन यहां पर क्या है? वेरी वेरी फाइन माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स। इज एवरीवन ओके? ट्रू? इज एवरीवन ओके? यहां तक हो गए माइक्रो। अब ये दब चुका है, दबा दें इसे। तो पहला तो मैंने प्रोसेस समझाया, कोल का भी बताया आपको, सो दैट यू गेट क्लैरिटी। मिलता कहां है यार, पता तो तभी उससे चलेगा ना। तो अब क्या हुआ है? एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। तो सेडिमेंट्स आर देयर, नीचे रॉक्स हैं, इस तरह के फोल्ड्स हैं, दीज आर रॉक। अर्थ के इनसाइड देयर आर रॉक, and these sediments have got trapped over here. मरीन सेडिमेंट्स है। साथ में क्या आया? किसके साथ आए? पानी के साथ आए, पानी भी। तो दे हैव बीन बेरीड एंड ये सब नीचे जा रहे हैं। क्यों नीचे जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। यस और नो? ग्रेविटी विल टेक ऑल दीज सेडिमेंट्स डाउन, एंड नाउ देयर इज अ lot of pressure is also there and temperature is also there because as they have gone inside. अभी और नीचे नहीं जा सकते, they can't go any further down. Why? Because of this rock. What is so special about this rock? This is impermeable rock. Is everyone okay? So what has happened? Subduction हो गई है। subduction हो गई है। subduction से those marine water and sediments they have gone inside and now they have, अभी बीच में कैसे चले गए? बिकॉज बीच में परमिएबल रॉक होगा, लाइक सैंडस्टोन। हो सकता है यहां पे सैंडस्टोन था, सैंडस्टोन इज परमिएबल सो इट वेंट इनसाइड, बट इधर क्या आ गया? इधर ग्रेनाइट आ गया सपोज, तो ग्रेनाइट विल नॉट अलाउ इट टू गो। इज एवरीवन ओके? तो द सेडिमेंट्स हैव गॉन डाउन, दे हैव बीन ट्रैप्ड नाउ। अब कहां है? फंसे हुए। एंड व्हाट इज हैपनिंग? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एंड नो ऑक्सीजन। व्हाट विल हैपन? After millions of years, these microscopic organisms, they will turn into liquid hydrocarbon. कोल नहीं है, कोल में क्या हो रहा था? All the कार्बन वॉज गेटिंग कंसेंट्रेटेड, ऑल इंप्यूरिटीज वर रिमूव्ड। इधर क्या है? वो छोटे छोटे जो कण हैं, दे विल टर्न इनटू लिक्विड हाइड्रोकार्बन, दे विल टर्न इनटू लिक्विड हाइड्रोकार्बन। आई हैव अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, विच वन इज हैवियर, वाटर और ऑयल? विच वन इज हैवियर, वाटर और ऑयल? विच वन इज हैवियर, वाटर और ऑयल? तो वाटर इज हैवियर, कोई ऑयल भी लिख रहा है, नशे में मत रहो, तेल हमेशा हल्का होता है। तो व्हाट विल बी द टेंडेंसी ऑफ दिस ऑयल ड्रॉपलेट? क्या टेंडेंसी होगी बच्चों? व्हाट विल बी द टेंडेंसी? ऊपर उठने की टेंडेंसी होगी,
Will they try to come up? Yes or no? Can they come out? Can they come out automatically? No. Why? Because sir the rock is stopping it. कौन सा rock है? Impermeable rock. So what is this rock? This is called the cap rock. इसने कैप लगा रखी है और यहां पर क्या है? बेस रॉक फंसा हुआ है. इज एवरीवन ओके? निकालने के लिए क्या करना होगा? व्हाट विल वी हैव टू डू? सर एक काम करिए ना, यहां पर एक कुआं खोद दीजिए. लेट अस डिग अ वेल. व्हाट इज दिस? ऑयल. नहीं तो एक ड्रिल करके होल कर दीजिए और होल में यहां पर पूरा एक सिस्टम बनाइए, पाइपलाइन से लेकर जाइए एंड यू गेट योर ऑयल. अच्छा, ऑयल जब भी होता है आपके घर में, कभी पेंट होता है तो पेंट से थोड़ा सा उसका पेंट का स्पिरिट का वो आता है, वेपर्स आते कि नहीं आते? तो ऑयल ऑल्सो हैज इट्स एसोसिएटेड वेपर्स. वो क्या होता है? नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज मीथेन. कुछ जगह पर ऑयल कम होता है, गैस ज्यादा होती है, बिकॉज दैट ऑयल हैज मोर गैस गिविंग. कुछ कम गैस है लेकिन ऑयल है, तो अलग अलग वॉलेटिलिटी के ऑयल्स होते हैं. इज एवरीवन ओके? आपको ऑयल निकालना आ गया. ये कहां पर बन सकता है? लैंड पर भी हो सकता है, कोस्ट पर भी हो सकता है. मोस्टली कहां पर होता है? एरियाज वेयर मरीन ट्रांसग्रेशन हैज हैपेंड. जनरली कोस्टल एरियाज जहां पे मरीन ट्रांसग्रेशन हुई है. इज एवरीवन ओके? ऑयल आ गया, समझ में आ गया. कोई भैंस डालने की जरूरत नहीं, कोई डायनासोर डालने की जरूरत नहीं है. माइक्रोस्कोपिक मरीन ऑर्गेनिजम्स कहां मिलेंगे? नीचे. ब्लैक पैंथर बोला गैस समझने. ब्लैक पैंथर तुम्हारे तो जवाब काफी ऐसे होते हैं. अभी मैंने बोला वॉलेटाइल कंपाउंड्स, चीजों में वॉलेटिलिटी होती है. आप घर में पेट्रोल रख के देख लीजिए, पेट्रोल उड़ जाएगा. वो जो उड़ता है उसे गैस कहते हैं. ठीक है. और बाकी ब्लैक पैंथर आपके सवालों को देखकर मैं तो कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं, साइंस एंड टेक टीचर से पूछ लेना, मैं नहीं बता रहा हूं भाई. डू वी गेट दैट? ये मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि मुझे कनेक्ट करना है किससे? दैट इज देयर. इफ वाटर इज देयर, व्हाई नो ऑक्सीजन? तो सौरभ को कोई बताए कि अगर सौरभ को पानी में डुबा दिया तो ऑक्सीजन की कमी से मर जाएगा. पानी होने का मतलब फ्री ऑक्सीजन नहीं होता है. बट फिर यह भी हो सकता है 8वीं क्लास का बच्चा ये पूछ रहा हो कि वाटर इज देयर तो ऑक्सीजन कहां गया? बेटा एनारोबिक कंडीशन ही है. पानी अगर कहीं पर है तो पानी में घुलित ऑक्सीजन से सांस लेती है मछली. बोला सर एनारोबिक कैसे होगा? फ्री ऑक्सीजन और वो. बट फिर वही वाली बात है ना, बच्चे यहाँ 8वीं क्लास के भी बैठे होते हैं, तो फिर क्या होता है कि पीपल हु आर गोइंग टू गिव द अटेम्प्ट इन 24, उनका भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, टीचर का भी कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा. बहुत ही सिंपल तरीके से बताया किस तरह से ऑयल बनता है. ये दो चीजें, या तो यहाँ पर बेसिन्स ऑफ द या मरीन ट्रांसग्रेशन एरिया, किसी वजह से सबडक्ट हो गए. क्यों सबडक्ट हो गए? जियोलॉजिकल इवेंट हो गया, नीचे दब गए. दबने से क्या हुआ? एनारोबिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, दैट विल टर्न इनटू लिक्विड हाइड्रोकार्बन. ठीक है. ये है अर्थ साइंस ऑस्ट्रेलिया, एक जियोलॉजिकल साइट है, वहां से मैंने उठाया. तो साइंस की चीजें हैं बट ज्योग्राफी में लेकर आया हूं. यहां देखिए ये पानी दिखाई दे रहा है बच्चों, पानी सैंडस्टोन में. सैंडस्टोन परमिएबल है लेकिन शेल नॉन परमिएबल. इसमें से ये गए इधर, ऑयल इधर इकट्ठा हो गया. सभी लोग 3 चीजें देख रहे हैं. एवरीवन कैन यू सी 3 थिंग्स? दिस इज ऑयल. यहां ऑयल इकट्ठा हुआ है, उसके नीचे क्या है? वाटर. और उसके ऊपर क्योंकि ऑयल में से गैस आता है, जो ब्लैक पैंथर समझ नहीं पा रहे, नाम इनका ब्लैक पैंथर है. पहले तो आपका जब नाम ही फर्जी होता है ना, तो उसके बाद तो मैं वैसे भी ज्यादा इज्जत देता नहीं हूं. जो अपना नाम भी बताने में वो रखते हैं तो फिर कहेगा वो. ये सुनो, तो ऐसे बनता है जो आपको बताया, प्रॉपर अर्थ साइंस की साइट से लाया हूं. एंटीक्लाइनल क्या होता है, ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स को बताते हैं हम. फॉल्ट ट्रैप क्या होता है, तो एक तो यहां फंसा हुआ है. कभी कभी इस फॉल्ट में ये रही गैस, ये रहा ऑयल और ये रहा वाटर. इस तरह से बनता है. वेरी वेरी नॉर्मल थिंग, ऐसे बन जाता है. इज एवरीवन ओके? सर अगर वाटर में ऑक्सीजन नहीं है तो फिश एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे सर्वाइव करते हैं? मुस्कान, कल आपने सवाल पूछा था कि सर मैं भूल जाती हूं तो क्या होगा. तो कल तक तो मुझे बहुत संवेदनाएं थी आपके साथ कि भाई भूल जाती है, तो मैंने सारी क्लास रोक दी. लेकिन आज आपका सवाल सुन के मुझे पक्का हो गया कि आप बहुत ज्यादा जानती नहीं है. तो हमारे पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, समझ रही? तो मछली जो है हाइड्रोजन H2O के मॉलिक्यूल को नहीं तोड़ती है,
डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होता है। और मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, एनवायरमेंट की क्लास में आपके एनवायरमेंट टीचर ने यूट्रोफिकेशन भी बताया होगा, कुपोषण भी बताया होगा कि कैसे डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की कमी होने से मछली मर जाती है। पानी रहेगा लेकिन फिर भी मर जाती है। तो मुस्कान, आपने मेरी मुस्कान ली तो थोड़ा सा लगा कि 8वीं 10वीं के बच्चे इस क्लास को इस तरह से रोक सकते हैं, बिल्कुल होगा है ना। और नीले कह रहे हैं आई थिंक प्लेट कैन डू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो नीले मुस्कान मत करिए यार, बहुत हो गया। अगर आप 8वीं में तो आप सीख लीजिए ना, आपको कोई जानकारी दे रहा है उसी जानकारी को ले लीजिए। अभी तो बताया किसी ने घुलित ऑक्सीजन, है ना। तो अगर मछली है तो फिर पानी के ऑक्सीजन कैसे कम हुआ यूट्रोफिकेशन में, आई एम वेरी वेरी श्योर टीचर ने बताया भी होगा। यस नो प्लीज वन थिंग मोर, शेल ऑयल इज डिफरेंट। हाँ मुकेश कुमार, शेल ऑयल बिल्कुल डिफरेंट होता है। कैसे होता है मैं इच्छुक नहीं हूं बताने के लिए, आई गिव अप ऑन दिस। इस क्लास में देखिए अभी वैशाली ने कहा सर अभिषेक सर ने बताया था, यूट्रोफिकेशन भी बताया टीचर ने, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन भी बताया, आई एम श्योर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बताई होगी सर ने, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बताई होगी। तो मतलब इन्वायरमेंट का टीचर हमें इतने सालों से ये बताता ही बताता हूँ, और उसके बाद भी स्टूडेंट अगर ये करते हैं तो या तो वो पूरी क्लासेस नहीं देखते हैं, हर टीचर को कुछ बीच में मजा लेने की ये कोशिश है, तो अच्छी बात नहीं, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मुझे शेल ऑयल पे जाना चाहिए। लेट्स कीप द शेल ऑयल एंड गैस आउट। आपकी जब साइंस एंड टेक की क्लास हो आप सीख सकते। तो मोस्ट ऑयल कहां से आता है बच्चों, मरीन एनवायरनमेंट से आता है। ऑर्गेनिक मटेरियल कन्वर्टेड इनटू ऑयल एंड नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस में कैसे होता है, उसके वाष्पित होने से, वाष्पित भी नहीं कहूंगा, इट इज अ वॉलेटाइल कंपाउंड। सो जो लाइटेस्ट कंपोनेंट है मीथेन इज योर नेचुरल गैस, उससे बन जाता है। अंडर जियोलॉजिकल प्रेशर ऑयल माइग्रेट्स। तो जियोलॉजिकल प्रेशर में ऑयल माइग्रेट करेगा कहां से, सोर्स रॉक, नीचे के जो रॉक हैं सोर्स, उनसे ऊपर जाएगा रिजर्वायर में। लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन हैव लार्ज पोरोसिटी, ये क्योंकि पोरस होते हैं तो इनमें से आसानी से निकल सकते हैं। और जो इम्परवियस टॉप होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अभी बताया था आपको, कैप या ट्रैप। ऑयल शेल क्या होता है, शेल इज एसेंशियली इमेच्योर सॉइल ऑफ सोर्स ऑफ रॉक। वो कभी भी ऐसी प्रोसेस ही नहीं हो पाई, इतना टेम्परेचर प्रेशर नहीं था कि वो सेपरेट हो पाए। So the oil was not able to separate, it is still trapped in the rocks. So shale oil is you have to pull out the rock and उस rock में से प्रोसेस करना पड़ेगा। ये इजी ऑयल होता है। शेल ऑयल मतलब अभी भी वो रॉक्स में फंसा हुआ है, दैट्स अ बिग चैलेंज। और इसी तरह से एक और ऑयल होता है जिसको टार सैंड कहते हैं, दैट इज फर्दर चैलेंजिंग। इज एवरीवन ओके, एवरीवन ओके विद दिस। तो ये हुए आपके ऑयल। अब मैं और साइंस में नहीं जाना चाहता हूं, मैं केवल भूगोल भूगोल सिर्फ भूगोल में बता देना चाहता हूं। तो ऑयल इन द वर्ल्ड, ऑयल एंड गैस रिजर्व्स कहां पर, नॉर्थ अमेरिका, जल्दी से लिखेंगे, नॉर्थ अमेरिका। नेचुरल गैस क्यों रॉक से नहीं निकलता, राजर्षि मंडल जी। मैंने तो कहा निकलता है, आप कह रहे हो नहीं निकलता और फिर कह रहे हो क्यों नहीं निकलता। पहले रोका और फिर बोला कि क्यों नहीं निकलता। वहीं से निकलेगा, उसी कुएं से निकलेगा, पहले नेचुरल गैस निकलेगा फिर ऑयल भी निकलेगा। नॉर्थ अमेरिका में यहां पर है बेरिंग स्ट्रेट, अगर आपको याद हो तो ये अलास्का में, नॉर्थ अमेरिका यूएसए में अलास्का रीजन। अलास्का के ऊपर कौन सा सी है, बोफोर्ट सी, अगर आपको याद हो, बोफोर्ट सी। एंड ये जो बेरिंग स्ट्रेट है, एक तो ये बेल्ट हो गया यूएसए का, दूसरा यूएसए का बेल्ट है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसमें सब जगह ऑयल है तो मैक्सिको को भी मिलेगा, यूएस को भी मिलेगा, बट जो ज्यादा मिला वो यूएस को मिला। और यहां पर जो स्टेट है, दैट स्टेट इज कॉल्ड टेक्सास, टेक्सास स्टेट। और कनाडा का अगर आपको याद हो, ये तो सेम ही एड्रेस है, एल्बर्टा सास्कचुवन। तो कनाडा में कहां पर है, कनाडा में है एल्बर्टा में, जहां पर कोल था वहीं पर है सास्कचुवन।
और ये कौन सा है, टार सैंड है ये। तो ये बहुत अच्छा ऑयल नहीं होता है, ऑयल और हाइड्रोकार्बन मिक्स्ड विद सैंड। ये सुनो, एवरीवन ओके विद दिस। ये कनाडा हो गया। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका भी यहीं पर कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है, एक ही जगह पर है, सभी लोगों को पता है। क्या नाम है उस जगह का, उस कंट्री का? वेनिजुएला। और झील का नाम मैराकाइबो। लार्जेस्ट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड है इनके पास। बट बहुत डीप है, नॉट इजी टू एक्सट्रैक्ट। जगह का नाम ऑलवेज रिमेंबर लेक मैराकाइबो। लेक मैराकाइबो याद रखेंगे। इज एवरीवन ओके? ये दो हो गए, दो कॉन्टिनेंट्स विद पिक्चर। आप अपने नोट्स में या एटलस में भी देख लीजिएगा, यू विल फाइंड देम। देन वी कम टू अफ्रीका। अफ्रीका, अफ्रीका में असली तेल यहां पर है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला आता है ये वाला, अल्जीरिया। और ये आ गया लिबिया। और लिबिया में आपकी एटलस में लिखा रहता है फैजान रीजन। दूसरा आता है ये, दैट इज नाइजीरिया और नाइजर डेल्टा। इन एरियाज में मरीन ट्रांसग्रेशन हुआ होगा, दैट इज व्हाई इट इज देयर। इज एवरीवन ओके? हाउ डू दे डिसाइड इट इज लार्जेस्ट? तो बाबू मोशाई जी, एक तो आपका नाम फर्जी है, तो एक पूरा का पूरा विभाग है, एक पूरा साइंस है जिसको जियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उनके पास प्रोसेस है ऑफ एस्टिमेटेड रिजर्व्स, एक्सप्लॉइटेबल रिजर्व्स, नॉन एक्सप्लॉइटेबल रिजर्व्स, उससे वो काउंट करते हैं, ठीक है। तो बाबू मोशाई इतना ही बता पाएंगे आपके फर्जी नाम तक। तो दैट इज देयर। सो नाइजीरिया, अल्जीरिया, लिबिया। इज एवरीवन ओके? ये यहां पर हो गया अफ्रीका में। मोस्टली ये दो एरियाज हैं, थोड़ा बहुत ये इक्वेटर के नीचे आपका आता है अंगोला। अंगोला में भी ऑयल है, अंगोला में भी ऑयल है, बट नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी ऑयल। ऑयल की क्वालिटी जनरली, ऑयल की क्वालिटी जनरली एक तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, सल्फर कंटेंट पे भी डिपेंड करती है। सल्फर इज एन इम्प्यूरिटी, सल्फर इम्प्यूरिटी होता है ऑयल में। हाई सल्फर के ऑयल को, हाई सल्फर जिस ऑयल में होता है, दैट इज कॉल्ड बिटर क्रूड। बिटर क्रूड, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। एंड जिनमें लो सल्फर होता है उनको स्वीट क्रूड कहते हैं। तो इन द वर्ल्ड देयर आर क्वालिटी रेटिंग्स ऑफ ऑयल ऑल्सो। फिर कोई पूछेगा बाबू मोशाय कैसे पता चलता है क्वालिटी? तो सल्फर इज वन ऑफ द पैरामीटर्स। और हमारे पास जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट एक क्वालिटी का पैरामीटर है। टेक्सास इंटरमीडिएट, WTI बोलते हैं, वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट, वो भी है। बट उतनी सब बातें आई डोंट थिंक सो क्लास अभी उस लेवल पे है कि हम उस लेवल पर ले जाएं। बट बिटर क्रूड और स्वीट क्रूड पता होना चाहिए, दैट इज दैट। तो अंगोला का क्रूड बहुत अच्छी क्वालिटी का क्रूड नहीं है, अच्छी क्वालिटी का क्रूड नहीं है, लेकिन सस्ता है। तो कहाँ पे जाएगा? इंडिया खरीद लेगा एकदम से। मैं कई बार अंगोला से तेल लेकर आया हूँ रिलायंस के लिए, तो रिलायंस यहाँ से खूब प्रोक्योर करता है। तो ये अफ्रीका हो गया। ऑस्ट्रेलिया में कितने लोगों को याद है, दो जगह पर डायमेट्रिकली ऑपोजिट बताया था मैंने आपको। एक तो यहां पर बास स्ट्रेट में, बास स्ट्रेट, और इधर क्या था, आराफूरा। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया भी हो गया। इज एवरीवन ओके? एक और क्लास भी स्टार्ट करनी है इसके एकदम बाद, जल्दी से इसको लास्ट में खत्म करते हैं।
ठीक है। तो यूरोप का ऑयल एक ही जगह पर है, यूरोप में ऑयल है इधर। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट ऑफ ऑयल इन यूरोप, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ। यूरोप का ऑयल किसके पास है? नॉर्थ सी में है। कंट्रीज जिसने आपस में क्लेम किया है इस पर, यूके, नॉर्वे, डेनमार्क, वो आपस में बांट लेते हैं। सो दैट इज हाउ दे हैव डन। इज एवरीवन ओके? दैट्स वन। उसके बाद यहां पर इफ यू रिमेंबर हमारे पास कैस्पियन सी, कैस्पियन सी में यहां ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ये एक एरिया है। ठीक है। उसके बाद ये तो पूरा एरिया आप जानते हैं, पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ, दिस इज ऑल ऑयल। इधर क्या है? कुवैत, इराक, ईरान, सऊदी, इस सारे एरिया में ऑयल है। तो एशिया में हम कहां पर हैं? पर्शियन गल्फ और कैस्पियन सी, कैस्पियन का जो कोस्ट है दैट इज दैट। फिर यहां पर आते हैं हम, फिर से आता है बेरिंग। यहां पर सी का नाम है सी ऑफ ओखोट्स्क, और यहां एक आइलैंड आपको बताया था साखालिन। हाउ मेनी इफ यू रिमेंबर दैट? ये ऑयल है। तो ये यूरेशिया है बच्चों, ये यूरोप हो गया, और यहां पर एशिया हो गया। दीज आर द बेसिन्स जहां पे मरीन ट्रांसग्रेशन हुआ होगा। इंडिया को मैं भी छोड़ रहा हूं, इंडिया के जो बेसिन्स हैं मैं आपको इंडिया में बताऊंगा। वी ऑल्सो फाइंड ऑयल इन बोर्नियो। तो यहां पर जो ऑयल है, दिस इज अनदर एरिया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया है। तो मलेशिया एंड इंडोनेशिया। प्लस एक और यहां पर कंट्री है जिसका नाम आपने सुना होगा, सल्तनत ऑफ ब्रुनेई। मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, इन सब में ऑयल है। एवरीवन ओके? तो इनको अपने नोट्स में फेयर कर लीजिएगा, जो मैंने नाम बताए। अब तो हमें याद भी हो गया कौन से सी को क्या टच करता है। तो आई जस्ट क्रिएटेड अ क्विक मैप फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप यू शुड बी इन दैट सिचुएशन आफ्टर दिस। यहां पर मैंने आप लोगों के लिए रिजर्व्स भी दे दिए। वेनेजुएला के पास हाईएस्ट रिजर्व है वर्ल्ड का 17.5%, जैसा कि बाबू मशाई ने पूछा था। आंसर ये है, जियोलॉजिस्ट इसको असेस करते हैं, पूरी एक साइंस है। जो आपके लिए मैप बनाए वो यहाँ पर भी बने हुए हैं। अदर थिंग्स, नॉर्थ अफ्रीका, ये ओरिनोको रिवर बेल्ट, सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। वेस्ट एशिया का स्पेशली इराक, सऊदी, ईरान, बिकॉज सऊदी अरेबिया के पास प्रोडक्शन वाइज बहुत बड़ा प्रोडक्शन है, और सऊदी अरेबिया बड़ा रिजर्व भी रखता है। सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक, दैट इज वाई आप देखते होंगे इतना जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर रहता है। उसके बाद टॉप 6 रिजर्व्स वेनेजुएला के पास जो है, ये भी आपको हैंडआउट में दे दिया गया है। आई थिंक ये हैंडआउट आप तक पहुंच गया होगा, अगर नहीं पहुंचा है तो वी विल डू इट। आई थिंक बाकी पिछले सारे पीपीटीज जो हैं, आई जस्ट चेक्ड बिफोर द क्लास, वो भी आप तक पहुंचा दिए गए। नेचुरल गैस, जो मैंने आपसे कहा हैंडफुल ऑफ कंट्रीज आर देयर। नेचुरल गैस इज ऑफन डिस्कस्ड एज अ ट्रांजिशनल फ्यूल। तो ये लगभग उन्हीं जगह पर मिलेगा जहां पर वो है, उन्हीं के साथ एसोसिएशन में यू विल फाइंड देम। नाइजर डेल्टा में मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, लिबिया में। सो वेर एवर आई शोड यू, उन्हीं जगह पर मिलने वाला। इज एवरीवन ओके? प्रोड्यूसर्स एंड दिस थिंग इज देयर। टॉप 6 नेचुरल गैस, थोरियम, ये कल करेंगे। अब न्यूक्लियर फ्यूल्स कल करेंगे। इज एवरीवन ओके? तो दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट। आई थिंक एनर्जी के लिए आपका थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग बड़ा होगा। ऑयल, गैस एंड दिस थिंग, ऑयल, गैस एंड कोल, फॉसिल फ्यूल्स की बात है। बाकी आपको इन्वायरमेंट या साइंस एंड टेक में जो भी अगर शेल और बाकी चीज़ें जानना चाहते हैं, कैन वेरी वेल टॉक इन दैट। माई जॉब वॉज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन। जिनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता उनको हमने आउट रखा है इसमें से, दे आर जस्ट एज कॉन्सेप्ट। इज एवरीवन ओके? व्हाई डिड आई टॉक अबाउट हाउ दे आर फॉर्म्ड? सो दैट वी कैन फाइंड आउट कुछ रूल होना चाहिए। कहां पर मिलेंगे? मरीन ट्रांसग्रेशन एरियाज में मिल जाएंगे, ये सुनो, जहां पे ओल्ड शेल्फ होगा। कैस्पियन सी का डिप्रेशन है, कैस्पियन इज अ लो लाइंग एरिया, so we will be using that. Is everyone okay?
So that is all, and now you have the weekend. Kindly complete all these slides, जरूर देखिएगा. And from Monday onwards, resource खत्म हो जाएगा थोड़ा सा. ये lithium, thorium और uranium I will be doing on Monday, but I want to switch over to industries, world industries, which is the last part of our syllabus. So thank you. Good night and enjoy your weekend. Bye bye. Jai Hind.